Okay, yes. So in the last class, we have already discussed regarding the various components of a good answer writing. What should we write? How should we write? We have discussed many things. Those who are not attended, so for them, I will discuss one or two concepts only, not all concepts which we discussed. They can refer to the script, and in case of any doubt, you can always call me. So we'll discuss again completely. But those who have joined today, because some of them have joined today only. So for them, I'll tell you that last time we have discussed many concepts of a very good answer writing, how to write, how to understand the answer, and write down the answer during the examination. And most importantly, that many people are demanding for some examples. So here we are showing you some of the examples based on our last concept. So first of all, I'll repeat some of the concept, one of the important concepts, and you can listen to it. And based on that, we'll discuss some of the questions. Okay. So the concept number one is that whenever you are, see, we have already talked about that there are statements in the question, and that statement or the context is there, and that is basically the people are first there is some statement of the or the context, and then the question is asked, right? Something there will be some statement, maybe it is a context or may not be a context, and then there is a question, right? Then what many people are doing and what the coachings are telling you, that you break the statement into various parts, into various keywords, and address them, write down the break the keywords and write down the meaning and the things related to the keywords, and then complete the answer. Okay, many of you are doing this since many mains also, and then you are thinking that after doing whatever the coaching people have told, or maybe toppers have told you are not able to score good marks in mains examination. So I'm going to discuss that. Is it right to break the statement into various parts and then address each part, or what is the right way? So we have discussed in the last session that there are two types of questions. Uh, Two types of questions, or two types of questions have such components. Like for example, there are two types. Like first is there will be statement or the context given, and the related question is asked. The question related to the statement is asked. Okay, concept one. Concept two is statement or context is there, and an unrelated question is asked. Unrelated with the statement or the context, the question is asked. Okay, so there are just two ways only. Yeah, either the question is related with the statement or the question is not related with the statement. You will find both of these types of questions in the examination. So in that case, the first way, that is the concept number one, that is statement is there and a related question is there. So in that question, in that part, you have to break the statement. You have to break the statement into various components, various keywords, and you have to explain, or you have to write some content on each statement, right? After writing all the content of the statement, and then you have to explain the question, explain the actual question, or you can write very little part of the breaking the statement, writing some content, and then address the question. Okay. And the other way around is that when the statement is given, the context is there, but the question is not related with the statement directly, or maybe not closely related. In that case, I've told that. Okay, I will turn out my camera. Okay, in the second concept, the statement is there and the question is not related with the statement. Okay, very little relation or almost no relation. In that way, in that case, the question, since the question is different with the statement, so you need not have to break the statement. Try to understand that you need not have to break the statement. Don't break the statement, and just try to understand the question right as per the essence of the question. However, in the introduction part, you can try to use the question. You can try to use the statement. Means you can explain the statement. You can use the keyword from the statement, and you can write down the introduction. But after the introduction, you have to write down what is being asked exactly.
Okay, what is being asked exactly. Okay, so this we have discussed. I think those who have attended last session, you know it, and those who are not will come to know by various examples. So now the question number one we'll discuss with the help of examples, that how the statement is related with the question and how the statement is not related with the question, and how you have to write the answer. Because see, essence of the question is very important. If the question essence is not being understood and you're writing something else, just breaking the statement, you will get almost average marks or less than the average marks, because you have not addressed the essence of the question, or understanding, without understanding the question you are writing the answer. It means you are just breaking the statement which has no relevance with the answer as per the UPSC direction. Okay, so come to question number one. Now in today's session you have to tell me some of your answers. What will you do? Okay, so let's see. It was the USSR which gained most out of World War II, and it was the USSR which lost most in it. Comment. Okay, now tell, what would be your approach in this part? You can unmute yourself. Maybe you can tell, then I will discuss. Okay. Don't see the answer. No, you have your own. You have the PDF with you, but you can ask. Even if you even if you say, then also it doesn't mean much. हेलो Yeah. हाँ सर, इसमें दोनों के जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट थे, जैसे पहले बोला उसने गेन किया, सेकंड में लॉस किया, वो बता देंगे और एंड में बताएंगे ये था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन की जो कंक्लूजन होगा इन द लॉन्ग प्रोसेस वो अच्छा नहीं था यूएसएसआर, क्योंकि वो आखिरी ब्रेकअप हुआ 1992 में. राइट राइट. ठीक है. और कोई any other way in which you want to explain? Anyone? Except that losses and the gains in the World War II. No as such, right? Because this is very easy. You see losses. So you'll just introduce. है ना? I've just written in very short way. You do introduce the question. Uh, yeah, you have to introduce the question, and then you have to write the losses, gains. Okay. So, and you have to conclude the answer with, you can write the breaking up of USR. Even in the case of introduction, you can even write that what is the immediate cause, or what is how the World War World War Two, in which in the World War Two, how the word is divided into two parts, and anything you can write just to introduce the topic, and how USR actually, which it was a part of which group, and so on. Okay, you can write something, one or two sentences only, that much only. Okay, so I think it is very clear, very easy question. Next question you come. Question number two. Communism is theory which revolutionized political thinking forever, and an ideology which gave solution of all social ills failed so miserably almost everywhere. Why? Now you tell, what will you do in this? This type of questions will come in the examination. Statement is there and one question is there. Now, first of all, tell me, is it related with the question? Yes, sir. It is related. Okay, related. Fine. I guess. So, what will you do? Sir, I will first write about, in the introduction definition, I will tell about communism. Then I will tell how it revolutionized the political thinking and what contribution it made. मतलब एक पेज है ना. उसके बाद में आ जाऊंगा what were the why it failed. मतलब why it failed would be for one and a half page. Like this. Acha, okay, okay. Any other?
सर पहले तो सिंपली जैसे बोला कि डिफाइन करेंगे, और सर उसके बाद जैसे इंडिया का एग्जांपल देंगे, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल कम्युनिज्म के, जैसे हमारे सारे कांग्रेस के जो है तो उनका एक, और साथ में सर उसमें बीच में डाल देंगे कम्युनिटी कि लेकिन ये एक ट्रांजिशन फेज था, लेकिन जो जो जिस कंट्री ने इकोनॉमिक मॉडल कम्युनिज्म का अडॉप्ट किया वो फाइनली उनको हटना पड़ा। और लेटेस्ट एग्जांपल चाइना जो स्टेट स्टेट लेड कैपिटलिज्म कर रहा है, जो आखिरी कंट्री बचा था क्यूबा और चाइना, वो भी चले गए हैं। लेकिन तो ये एग्जांपल एंड में दे देंगे अगर ये ठीक है तो। ओके, तो ये तो इनकम्प्लीट हुआ, और एनी अदर? सर स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कि कम्युनिज्म किस तरीके से जैसे रशिया से वहां से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हम लोग ये कहेंगे कि वो फॉल आउट क्यों हुआ, इस पे सबसे ज्यादा ड्वेल करेंगे कि एक फेस था कि पूरी जगह कम्युनिज्म था, लेकिन वो उसके बाद वो पूरा फॉल आउट हुआ, उसके वेरियस रीजन हम लोग वो करेंगे कि क्यों फॉल आउट हुआ, उसमें क्या क्या कमियां थी, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि जो था कम्युनिज्म दो तो ये आया था, लेकिन जो आज जो बहुत ही ज्यादा कम्युनिस्ट देश थे आज वो भी कम्युनिज्म से एक तरीके से हट रहे हैं। अच्छा, ओके, फाइन फाइन, ठीक है। सी, इन दिस केस आई विल टेल यू समथिंग that many of the students, yeah, this was the part of the question last year test series का part था ये. So generally what people are doing, I'll tell you that they are actually breaking this statement. Like the first part will be political thinking, then second will be the solution of social ills, and third part is failed so miserably, right? This type of, they are dividing into three categories or three keywords, and then they are explaining each keyword. They are first talking about how it has revolutionized the political thinking, then they are talking about social ills, what, how it is a solution of all social ills, and then they are writing failed so miserably, right? Almost everywhere. So like this they are writing. See, I'll tell you that always think about, this is actually one way they are writing. But if you see the question essence, what is the essence of the question? See, if you're not getting the essence of the question, so in that case, if you are not writing what exactly it is asking and you're writing what you are thinking that it is asking, then there is a difference. Because in this question, it is asking why, basically, it is asking why communism failed, right? It is mainly asking that what are the reasons for the failure of communism, right? यही पूछ रहा है. But in case you want to write something that how the it has changed the thinking, political thinking, then solution of what all social ills, that means the equity है ना, and social justice, ये वाला part. Political thinking मतलब it has changed the concept of king, kingship है ना, now the community is the honor, ठीक है, and then how it failed miserably and how, why it failed, right? तो इसके तीन पार्ट, you will be seeing that there are three parts, but in actual sense it has majorly one part, that is why it failed miserably. ठीक है, मतलब ब्रेक कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मतलब इन केस, see, you have to understand that it is your own prerogative. Now if you think that the all the three keywords are not equally important, the important keyword is why it failed, right? Then you have to address majorly, that means 75% or 70% of the answer why it failed, and rest 25% you can explain that with little no, one or two lines, that how it has changed the political thinking, or maybe how it has given the solution of social ills. Okay, see what actually demand of the question you have to understand ना, ये अपने, ये आपको जस्ट एक मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि जस्ट डोंट अप्लाई माय थिंग एज इट इज, यू हैव टू थिंक द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का एसेंस क्या है? अगर क्वेश्चन का एसेंस is coming that you have to break the keywords and then answer, you break the keywords and answer. If the essence is that more emphasis on some major keyword is there, then you have to explain more part in that major keyword. Here it is failed so miserably, that is why it failed basically. And then when it has no relation with the question, then you break this keyword and write an introduction, good introduction, and then you come to the exactly what is being asked, what is the essence of the question, you explain that, even if it is not much related with the statement. Are you getting me? So in this case we are going to answer majorly that how and or why it has failed, that is away from democracy,
work without incentive, no incentives are there, inefficient system, force system, right? Exhausting of valuable resources, no checks and balances of goods and services, long term social tension, discontent, create a economic political crisis. ठीक है, सो ये तो जस्ट हमने इसका बॉडी लिखा है, बट यू कैन राइट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, वो आप कर सकते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, राइट? एनी डाउट इन दिस, देन यू लेट मी नो। बहुत ही क्लियर है, इसके बाद हम और भी लेंगे तो यू विल कम टू नो। मेरे को एक डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ? यस सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें एक वर्ड है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो सर इसमें अपने को पूरा मतलब एवरीवेयर का अलग से बना के कि हर कंट्री में नहीं शो इट कि भाई पहले यहाँ फेल हुआ फिर वहाँ फेल हुआ? नहीं, मतलब एवरी लेवल यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ यूएसएसआर, है ना, जहाँ फेल हुआ है, ब्रेक हुआ है ना। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ चाइना वगैरह की, वो भी इट सीम्स दैट इट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, बट देयर वहाँ पे वो लोग भी कैपिटलिस्टिक जो आइडियोलॉजी फॉलो कर ही रहे हैं, है ना। तो यू कैन गिव, मतलब उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है कम्युनिस्ट, लेकिन बाकी जो उनका काम है वो पूरा उनका क्या बोलते हैं कैपिटलिस्टिक है ना, इकोनॉमी जो है उनकी, ठीक है। ठीक है सर, इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन डोंट गो फॉर लाइक ऑलमोस्ट। देखो कीवर्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ पे सिर्फ है क्यों फेल हो गया, ठीक है। तो वो दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द आंसर। अगर आप इसको कम कर देंगे, मतलब देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन राइट, यू सी मैंने इसमें कितने आपके पास कम से कम 8 पॉइंट है, और भी लिख सकते हैं, you can write more points, but if you are more focusing on the less important parts, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आपके पास उतना पेज नहीं होगा, so you will be writing very less points। आप मतलब आप 4-5 पॉइंट लिख पाए, तो you see the person who is writing 4-5 points and the person who is writing 8 points, तो उसमें डिफरेंस हो जाएगा ना मार्क्स में, right? Because he has explained that why communism failed so miserably, है ना, right? Coming to the Yes, sir. coming to the next question, इसमें बताओ, France was politically more powerful nation, whereas Russia was geographically more powerful one. However, industrial revolution came in England before any other European nation. Why? Give reasons. सर इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं कि रशिया और फ्रांस जो था पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली मतलब सबसे पहले ये बताना है कि रिलेटेड है कि नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड, ऑब्वियसली यस। सर ये स्टेटमेंट जो है उसका हाफ पार्ट जो है वो रिलेटेड है कि हाउएवर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था इंग्लैंड में आया बिफोर हैंड रशिया और फ्रांस में आने से पहले, तो ये रिलेटेड है और इसी चीज को एड्रेस करना है। मेन बॉडी पार्ट हमारा यही होगा कि क्यों इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऐसा कौन सा फैक्टर्स था जो इंग्लैंड में था ऑलरेडी जिसके कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पहले आया, जबकि ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकली रशिया के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहां पे था, तो फ्रांस बहुत ज्यादा पॉलिटिकली डेमोक्रेसी वगैरह पहले फ्रांस में स्टैब्लिश हुई, लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे आया, पहले इंडस्ट्री मतलब इंग्लैंड में आया, ये एड्रेस करना सर। ठीक है, एग्जैक्टली सर यस। मेरे हिसाब से सर ये Even if you are wrong, you tell me, because then it will come, no, you will understand more importance of the question. हाँ, इसमें तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट लाइन हटा भी दे कि फ्रांस वाज पॉलिटिकली, वो लाइन हटा भी दे कि व्हाट वाज द रीजन फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू अराइज इन इंग्लैंड फर्स्ट। ठीक है, देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। हटा भी दोगे तो भी वही आंसर, वही क्वेश्चन होगा, पर यू सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट का एसेंस देखिए, इट्स वेरी क्लियर दैट फ्रांस वाज पॉलिटिकली मोर पावरफुल नेशन, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। सेकेंडली रशिया वाज ज्योग्राफिकली मोर पावरफुल, वहां भी नहीं हुआ, इंग्लैंड हुआ। लेकिन इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द प्रीवियस वन, कि इसमें यू कैन गिव बोथ वन। फ्रांस का देना है छोटा सा, रशिया छोटा सा, लेकिन मेजरली इट इज अगेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम इन इंग्लैंड। क्यों आया इंग्लैंड में, तो आपको कम से कम 10 रीजंस मिल जाएंगे। सर इंग्लैंड का रीजंस देते हुए हम लोग उसके रीजंस जब देते रहेंगे तो हम लोग ये चीज उसको वहां पे कंपेयर करते रहेंगे कि क्यों फ्रांस और रशिया में नहीं हुआ, मतलब मेरे हिसाब से दोनों कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। इधर यू गो फॉर फर्स्ट फ्रांस के बारे में, मतलब यू ब्रेक द स्टेटमेंट इनटू 3 पार्ट्स कि व्हाई फ्रांस वाज, मतलब फ्रांस में क्यों नहीं हुआ, स्प्रेड हुआ, तो पहले फ्रांस वाला पार्ट हो जाएगा, सेकंड रशिया वाला पार्ट हो जाएगा, और थर्ड वाला हो जाएगा इंग्लैंड का। मेजरली इंग्लैंड का रहेगा 70% टाइप से, लेकिन इन केस इफ यू वांट टू राइट टुगेदर तो आप इंग्लैंड का लिखो, और उसी में जो फैक्टर्स इंग्लैंड में अच्छे हैं और उन दोनों में नहीं है तो वहां भी मेंशन कर सकते हैं। पर यू सी द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर विल बी ऑल तीनों अलग अलग, ठीक है, तीनों को अलग अलग ब्रेक करके अलग अलग लिखना बेस्ट होगा। क्लियर है ना? क्योंकि सर इसमें वैसे नहीं, सर आपने पहले वाले उसमें बताया था कि फर्स्ट 25 में फ्रांस और रशिया एक्सप्लेन कर दें,
और 75 में यूरोपियन मतलब इंग्लैंड का हाँ मेंशन कर जैसे सकते हो, आपने पहले बिल्कुल कर सकते हो, सर कर सकते फ्रांस हो, और रशिया को लेकिन दोनों को लेकिन अलग अलग की जगह क्लब करके भी तो कर सकते हैं। क्या रीजन था नहीं फ्रांस और रशिया का तुरंत का नहीं, एक क्लब साथ? नहीं कर सकते, क्लब नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग रीजन है। बताइए क्या रीजन हो सकता है, फ्रांस का क्या रीजन है? इसका तो वो politically बहुत ज्यादा मोबिलाइज था वो, और रशिया जियोग्राफिकली था। नहीं, रशिया जैसे ज्योग्राफिकली तो क्यों स्प्रेड नहीं हो पाया, क्यों वहाँ, क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं फैला? एकदम लॉजिकल है, एंड इट्स वेरी बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। अरे इतना बड़ा नेशन है, भाई स्कैर्स पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज उसके क्या वाइड स्प्रेड है, क्या साइबेरिया में आधे टाइम के बर्फ रहती है, राइट? तो वहां से कैसे रिसोर्स, कैसे एक्सट्रैक्शन होगा, कैसे मिनरल्स निकलेगा, राइट? और लोग भी कम है वहां पे, है ना? और क्या क्या है, उसका ऑयल अलग लोकेटेड है, ये अलग लोकेटेड है ना? इंटरलैंड उसका, जहां से उसको मिलेगा, क्या बोले, एक्सपोर्ट होगा चीजें, वो बहुत दूर है, और जो क्या माइनिंग है वो कहीं और है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है ना? ऊपर से वहाँ का जो जार्स हैं, दे आर नॉट सो मच, जो वो लोग थे, जो रूलिंग क्लास था, जार्स एंड ऑल, दे आर नॉट सो मच, है ना, क्लोजली एसोसिएटेड विद द ट्रेडर्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप यू कैन थिंक एंड मेक, जो इंग्लैंड में था और यहाँ नहीं था, राइट? इंग्लैंड का लोकेशन सबसे मेजरली वो था पोर्ट लोकेशन, मतलब चारों तरफ सी है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन मेक इट इजिली। ठीक है, क्लियर है? तो नाउ ये इसमें लिखा है, मेजरली लिखा है मैंने इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में लाइक इनोमरस एक्सपेंशन इन ब्रिटिश ट्रेड, ग्रोइंग डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स, वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इंसुलर पोजिशन ऑफ ब्रिटेन, एंड देन द लोकेशन ऑफ द कोल एंड आयरन। ठीक है, इस तरह से यू कैन राइट। क्लियर है ये? इज इट क्लियर और नॉट? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ सर जैसे मतलब मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो इंडिया और जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, ठीक है, और फिर उसमें ये पूछ दिया कि भाई डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट व्हाट इफेक्ट इट कुड हैव ऑन इंडिया, या फिर सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप विद श्रीलंका, मतलब ऐसा लिख दिया कि डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन द सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप ऑन इंडिया। तो अपन पूरा लिखेंगे ना कि इंडिया के इंटरेस्ट पे कैसे फर्क पड़ सकता है, या सिर्फ आज के करंट का लिखेंगे? नहीं, सेंचुरी देखो, जो लिखा है सेंचुरीज तो लिखोगे, पूरा लिखोगे, और यहाँ तक का मतलब आज तक का लिखोगे, बट इट शुड बी ब्रीफ, ब्रीफली लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, और कोई डाउट? इसमें डाउट क्लियर है? ये जो वाला जो कल जो उस दिन पूछा गया था कि ये कैसे हम करेंगे एग्जांपल्स के साथ, काफी लोग बोल रहे थे, एग्जांपल तो मैंने बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आज पूछा था किसी ने, लेट मी टेल यू दैट आल्सो। कौन था वो आज? पॉलिटिकल चेंजेस भी लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल चेंजेस किसके? फ्रांस के? हेलो, फ्रांस के? सर रशिया के जो है हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते कम्युनिज्म, हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसकी वजह पर से भी वो चेंजेस हुए लिख सकते हैं, जोग्राफिकल मेन है, लेकिन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। सर। देखिए वो हाँ जी सब सर, क्वेश्चन, क्लियर। वो सब पार्ट ना बहुत ही सबऑर्डिनेट है, जो पार्ट है। मेन पार्ट क्या है, वो उसको आपको फोकस करना। मेन पार्ट है कि इंग्लैंड में क्यों स्प्रेड हुआ, राइट? ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये वाला चलो, मेरा एग्जांपल वाला जो पार्ट बोला गया था वो मैंने यहाँ एंड कर दिया। नाउ विल टॉक समथिंग अबाउट एसेज। ठीक है, ऐसे का तो आज पूरा नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा डिटेल में, बट नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एंड कर देंगे ऐसे के बारे में, बहुत बहुत माइन्यूट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। टुडे आई विल टेल यू दैट सम ब्रॉड पॉइंट्स। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको ऐसे में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
Okay. Okay, today little bit we are discussing about essay. First of all, try to understand कि essay आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है? Most of you are reading, you are writing also some test of essay. क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है essay में अभी पढ़ते समय. First of all, we have divided the test in the various forms of what you call themes. जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका टेस्ट 1 है that is based on women, है ना, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, है ना, ऐसे ऐसे करके सारे पार्ट में एसेस ब्रेक किया हुआ है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. दे आर द थीम्स. क्योंकि सीखिए एग्जाम में आइदर यू गेट ए वन क्वेश्चन ऑन वुमेन और एजुकेशन, और या कोई भी दोनों में से एक क्वेश्चन आने आना है. एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आ सकता है, एनवायरनमेंट में आ सकता है, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आ सकता है, राइट. लाइक दैट यू कैन वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग. फिर एक कुछ आ सकता है पॉलिटिकल ऐसे आ सकता है, कुछ कोई इकोनॉमिकल ऐसे आ सकता है, राइट. एंड सोशल क्या इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, इन सब इश्यूज पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर एक फिलोसफिकल तो होता ही है, राइट. So we have divided these essays into various themes. Now the thing is that how you are going to prepare such themes, because ये themes पे क्वेश्चन बन के आएगा. जो भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन बन के आएगा एंड यू हैव टू एड्रेस दोज थीम्स. मतलब उस जो थीम्स से क्वेश्चन जो आप जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करेंगे बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ थीम्स. अब चक्कर क्या है कि थीम्स की कैसे पढ़ाई करें, हाउ यू आर गोइंग टू रीड द थीम्स. थीम्स का बेसिकली देयर आर यू हैव टू रीड वेरियस क्या बोलते हैं फॉर्डर मटेरियल ऑफ फॉर एसेज व्हिच आई हैव शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल जहां आप लोग हैं. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सम ऑफ द फॉर्डर मटेरियल. यू कैन आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द मार्केट. जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टेस्ट इज ऑफ क्या वुमेन और या एजुकेशन. So you go through the whatever the fodder material is available in the market or whatever I have shared कि आप वुमेन पे कोड्स देख लीजिए, राइट, डेटा देख लीजिए, एनी कोई भी रेलेवेंट आइडिया जो उसमें दिया होगा, है ना. फिर गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, ठीक है, कुछ लीगल का होगा पार्ट, है ना. देन मे बी सम पार्ट ऑफ सोशल, है ना. इस तरह से यू गो थ्रू सम ऑफ द फॉर्डर मटेरियल. फॉर्डर मटेरियल में सब कुछ होता है. आजकल सारे कोचिंग के मटेरियल निकलते हैं थीम वाइज, वुमेन पे, एजुकेशन पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट पे. तो यू गो थ्रू सम ऑफ द मटेरियल, ठीक है. एक नहीं दो तीन मटेरियल, नॉट जस्ट वन, मे बी 2 to 3 मटेरियल्स. तो क्या होगा कि आपको ऑलमोस्ट आपका फॉर्डर मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा. वुमेन विद रिस्पेक्ट टू द विमेन, विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन, योर फॉर्डर मटेरियल विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीट. देन यू डू द रिवीजन ऑफ इट मेनी टाइम्स. एटलीस्ट मैंने बोला था पहले भी कि वॉट एवर यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज मिनिमम 3 to 4 times, don't pick it up as of now, because फिर वो उसका कोई यूज नहीं है, राइट. सो अगर आप इसको रिवाइज कर पाएंगे 3 to 4 times ऑल द फॉर्डर मटेरियल, ऑल द थीमेटिक मटेरियल, देन इट इज गुड. उसको रिवाइज कर लिए, अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिए, एंड ट्राई टू नो दैट क्वेश्चन आएगा वुमेन पे. देखिए पक्का आना है, एक वुमेन पे आना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्रेडल पे क्वेश्चन आया, वो भी क्वेश्चन वुमेन पे ही है, राइट. सो जो क्वेश्चन आएगा यू थिंक इन योर माइंड कि ये एक अच्छा लाइन है, आई विल राइट डाउन, मैं इसको लिखूंगा एग्जाम में, ये अच्छा कोट है, मैं इसको लिखूंगा, है ना. ऐसे आप माइंड सेट अपना ऐसा बना लेना है, ठीक है. एंड डेफिनेटली यू विल बी राइटिंग इट. आपको वो अपने आप याद आ जाएगा एग्जाम के समय कि मुझे इसको यहाँ डालना है, इसको वहां डालना है, राइट. सो दिस यू हैव टू डू. तो पहला है दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन. एंड वेन एवर यू आर राइटिंग द टेस्ट, जस्ट रिवाइज दैट जो भी थीम मैंने किया हुआ डिस्कस कि ये थीम का ये टेस्ट है, जस्ट गो थ्रू द दोस्त fodder material of that themes, whatever material I've shared, as well as from some other material in the market or whatever material you want to read, ठीक है. जस्ट दो तीन मटेरियल सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है. एंड देन योर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज ऑलरेडी देयर, योर रीडिंग ऑफ जीएस मटेरियल, करंट अफेयर्स, विजन, व्हाटएवर इज देयर ऑलरेडी देयर. सो वो सब कुमुलेटिवली ऐड हो जाते हैं, ऑल द जो भी थीम्स में अपने आप अनकॉन्शियसली यू आर लर्निंग देम एंड यू विल बी यूजिंग इट एज पर द क्वेश्चन asked in the examination, right. So this way you are going to assimilate and accumulate
many of the materials and the fodder material in your mind, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर नाउ कम्स द प्रैक्टिस, फिर आप यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे। तो टेस्ट में नाउ I'm telling you that what you are going to do in the examination or whatever you are going to do in the examination, you can start doing in the test, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है टेस्ट 1 है, it is regarding the theme 1 जिसमें वुमेन एजुकेशन है। नाउ यू हैव रिवाइज्ड ऑल द थीम्स, ऑल द टॉपिक्स इन दैट थीम, एंड यू आर राइटिंग द टेस्ट, या मान लीजिए एग्जामिनेशन टाइम का ही। सो यू हैव 2 एसेज, ठीक है, यू हैव 2 एसेज, वन इज जनरल ऐसे एंड अदर इज फिलोसफिकल। डोंट थिंक कि फिलोसफिकली दोनों है। पहला वाला जो सेक्शन होता है वो जनरली फिलोसफिकल पूछ रहा है आजकल, सेकंड सेक्शन में जनरल है, पर जनरल का लास्ट ईयर का जो वर्डिंग है इट सीम्स टू बी फिलोसफिकल, पर वो है जनरल ही, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड कि दोनों फिलोसफिकल नहीं, लेकिन एग्जाम में दोनों फिलोसफिकल भी आ सकते हैं, प्योरली फिलोसफिकल भी आ सकते हैं। तो जनरली यूपीएससी हैज डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स कि जनरल भी है, फिलोसफिकल, पर ऐसा बताया नहीं गया है कि हम या तो जनरल रहेगा फिलोसफिकल या दोनों रहेगा या फिर कोई नहीं रहेगा, मतलब इसके अलावा भी कुछ रहेगा, ऐसा बताया नहीं गया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि 2 हैं, एक जनरल है एंड एक फिलोसफिकल है। तो इन बोथ द एसेज में आपको फर्स्ट करना है जनरल वाला, बिकॉज सी फिलोसफिकल ऐसे में थोड़ा सा ट्विस्टिंग रहेगा। सो आप पहले उस क्वेश्चन को नहीं करना है जिसमें आपको थोड़ा भी डाउट है, because we have discussed, हमने already discuss किया the order to attempt the questions in the examination। उसमें क्या बताया था कि whichever you know best you have to attempt first। so following that principle here, if you are understanding very well कि जनरल ऐसे क्लियर है तो जनरल कर लो पहले। अगर ऐसा भी कभी हो जाता है कि जनरल का बहुत टफ आ गया, नहीं समझ आ रहा है, then you go for the philosophical first, ठीक है। then there is no choice, so you have to go for philosophy। but पहले ऐसे वो होना चाहिए in which you have understood almost everything, anything आपको सब पता है, ठीक है। एक गलती लोग करते हैं आजकल, मैंने देखा है, मेरे टाइम में भी लोगों ने किया था, मेरे बहुत सारे मित्रों ने किया था और भी लोग किए थे। दे आर सेइंग दैट कि भाई एक क्वेश्चन आया वुमन पे आया, एक क्वेश्चन आया कोई साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे आया, राइट, एक क्वेश्चन आया साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट पे। सो क्या हुआ, एवरीबडी थॉट कि देखो वुमन पे तो सब करेंगे, एवरीबडी विल राइट ऑन द वुमेन, एंड सो ऑब्वियसली वी विल स्कोर लेसर मार्क्स, बिकॉज सभी लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि कोई खास तो लिखा नहीं किसी ने, तो सो यू विल गेट ऑलमोस्ट लेस देन मे बी 110 या उससे का आसपास मिलेगा, वो 110 120। पर इफ समबडी इज राइटिंग इन द फिलोसफिकल, सो यू विल गेट अराउंड 140 प्लस। ऐसा माइंडसेट जनरली कोचिंग वाले भी कर देते हैं। दे विल टेल यू दैट okay, you write something which is rare, which nobody is writing, and you have good command, you write on that topic, examiner will go for क्या बोलते हैं गागा हो जाएगा और कहेगा कि साइकोलॉजी क्या बढ़िया से है, एंड वो आपको देगा 140 प्लस दे देगा। लेकिन आप उस पे लिखेंगे जिस पे सब लिख रहे हैं, तो यू विल थिंक वुमेन और एजुकेशन पे तो सभी लिखे हैं तो इसको क्या दें 110 दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो आपको गुमराह कर रहा है, राइट। अब तक आपको पता चल चुका होगा इतने टाइम से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कि ये पूरा एक तरह का नहीं बोलते क्या, वो हॉक्स है, मतलब एकदम फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि जो टॉपिक एवरीबडी नोज उसमें लेस मार्क्स हैं, और जिसको जो टॉपिक में किसी भी नहीं आता उसमें ज्यादा मार्क्स हैं। क्योंकि कोचिंग बोलते हैं कि इसमें तुम वो लिख दोगे जो उसको लगेगा अरे क्या बढ़िया लिखा है। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनर। सी एग्जामिनर हैज नथिंग टू डू ने इस पे लिखा है, he has written on this topic, or that fellow has written on another topic। Generally in the examination the distribution of essays will be there on the basis of the topic। That means some examiners will be given the topic of क्या women है ना, कोई जो उसमें 4 क्वेश्चन होगा 1 2 3 4, all the 4 topic will be checked by different person, क्योंकि after some time, after some checking, they will be specialized। जैसे आप 5 कॉपी चेक कर लो, 10 कॉपी चेक कर लो, you will be highly specialized on that topic। now you know that what you should write, what you should not write, और क्या मिसिंग है, क्या होना चाहिए, राइट। सो वो एग्जामिनर क्या करेंगे, दे विल बी चेकिंग देयर ओन एसेज। सो इफ योर टॉपिक इज मे बी साइकोलॉजिकल या कोई टफ टॉपिक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, और वुमेन एजुकेशन का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 है, so question number 1 is given to a separate examiner and question 4 is given to a separate examiner, and you are being judged on the basis of those persons, candidates who are writing on the same topic। जो लोग वुमेन पे लिख रहे हैं तो वो उनका जजमेंट वुमेन वाले पे होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 पे लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पे होगा। सो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन वुमेन एंड ये क्या बोलते हैं जो और टॉपिक का होगा, राइट। देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो इन दैट केस
those who are writing good in question number 1 will get good marks, those who are writing good in question number 4 will get good marks. लेकिन this is no comparison between question 1 and 4, because whenever you choose a rarely known topic, rarely known मतलब आपको लगता है कि बहुत कम लोग लिखेंगे, लोगों को पता नहीं है, और आपको थोड़ा सा हल्का सा पता, you are having some glimpse idea or maybe little bit idea, and then you are deciding that you write on that part. So I'm telling you that because since you are writing on lesser known topic, you will be having lesser content, and many things you will thinking that whether you should write it or not, because you are confused because of the that कि मेरे को sure नहीं है, right? You're not very sure कि मैं लिखूं ना लिखूं. पर here in question number 1 you know the content very much, and you are very sure about to write anything and everything you know. So here you will be having more content, and then you will think less and write more, right? So ये पहला choice, पहला मतलब कुछ जो choice है ना ऐसे का, that is very important. If you chosen the lesser known topic, then 50% of the battle is lost, right? जब तक आप उसमें excel नहीं कर जाएंगे आप. Lesser known topic मतलब if you know any topic best, choose that one only. Don't go for the है ना कि लोगों का opinion कि ये सब इस पे लिखेंगे मैं उस पे लिखूंगा. Don't go on that topic. The best topic you choose a topic based on your best knowledge, best content. Okay, so आपने जो तो ये वाला पहला ये चीज है, पहला नियम है कि आप जो अच्छा आता है उसको चूज करिए. Just don't think about philosophical, just think about first of all your general essay which you want to write. फिर after choosing topic you will take maybe 2-3 minutes आप ले सकते हो. You will think something and then you will decide that okay, I'll go with this topic. Okay, then on that topic you have to do brainstorming. सबसे important है brainstorming. See, brainstorming, whenever you are doing brainstorming, there are various ways. क्या करते हैं लोग, बता रहा हूं मैं. The people here are doing brainstorming are doing like this. First they will think, okay, what I will write in the introduction, है ना? They will write the keywords, then whatever I'll write in the body, then they will write the keywords, है ना? सब keywords लिखते जाएंगे. Then what you will write in the conclusion, you will write something, some quotes here, then here some quotes maybe, or examples. So you are actually brainstorming, है ना? But this is called organized brainstorming. Organized क्यों? क्योंकि you are already organizing your thoughts into various parts. That is पहला introduction है, फिर body में क्या होगा पहला, what will come in the body, in the beginning, in the middle, in the end, then conclusion, what will come in the conclusion, in the end. ठीक है? Your mind is basically segregating and filtering the information and then organizing and doing brainstorming and then writing as a keyword here in the rough page, right? Here, okay, ये आप लोग करते हो, कितने लोग करते हो ऐसा? सर मैं ऐसा ही करता हूँ, मतलब इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आखिरी में करता हूँ. बॉडी में पेस्टल फ्रेमवर्क में थीसिस और एंटीथीसिस, कोट्स और प्रोपोजिशन लिख लेता हूँ पूरी. ओके मतलब उसको ऑर्गेनाइज करके करते हो पूरी तरीके से, राइट? हाँ बिल्कुल सर. ठीक, और कोई? सर मैंने किया है ये ऑर्गेनाइज, पर मेरा इतना ऑर्गेनाइज नहीं था. वो भी पता चला है कि हाँ कीवर्ड्स को भी ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं. अच्छा, ओके. और मोटा मोटी सभी कर रहे हैं ऐसा, या फिर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं? सर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. राइट हैंड साइड में जितने भी करंट अफेयर्स का जितने भी एग्जांपल्स हैं वो मैं रैंडम लिखते जा रहा हूँ, जो भी दिमाग में आते जा रहा है वो लिखते जा रहा हूँ. और फिर लेफ्ट हैंड साइड में डिपेंडिंग ऑन टॉपिक पेस्टल फॉर्म में या इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे. ओके, ठीक है. कोई आइडिया मतलब इतना होना चाहिए कि मतलब कि कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, मतलब हम भी अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो बॉडी में कितने एटलीस्ट इतने कीवर्ड होने चाहिए कि हमारा कंटेंट अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, या हम उतना अच्छा आंसर उतना अच्छा ऐसे लिख पाएंगे. क्योंकि 10 पेजेस का लिखना होता है, फुल 5 पेजेस. तो कोई आइडिया हो कि 10 से 50 या 20 कीवर्ड्स होने चाहिए कि हाँ हम उसके ऊपर काम कर लेंगे, अच्छा खासा उसमें जो है ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है. Okay, I'll tell you. See, first of all, try to understand that organized brainstorming नहीं करना है. जो लोग कर रहे थे अभी तक गलती कर रहे थे, ठीक है? Organized brainstorming नहीं करना है.
आई टेल व्हाई। जब आप कॉलेज में थे, मे बी इंजीनियरिंग कॉलेज और क्या क्या ग्रेजुएशन कॉलेज, सम टीचर कोई आता है, कोई वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी आता है, and generally maybe someone who is coming to teach you some new topic, maybe uh, how to use maybe how to use the eco-friendly plastics, मान लो ये टॉपिक है। So somebody is coming as a guest faculty and is teaching you कि भाई कैसे इको फ्रेंडली प्लास्टिक कम यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ही विल कम टू द बोर्ड, ही विल राइट डाउन द टॉपिक, देन ही विल आस्क दैट नाउ एवरीबॉडी शुड टेल मी, आई विल राइट ऑन द बोर्ड, जो जो टॉपिक बताएंगे, जो जो वो बताएंगे कि व्हाट आर द, हाउ ही कैन यूज द इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या बताएंगे, आई विल राइट डाउन इन द बोर्ड एंड ही विल से डोंट थिंक इट इज रॉन्ग और राइट, जस्ट यू टेल मी विदाउट एनी की थॉट, उसको जज नहीं करना है, बस बता देना है, ठीक है। सो एज सुन एज द क्लास विल स्टार्ट सेइंग कि सर प्लास्टिक है तो उसको हम क्या मतलब उसका पेड़ बना, उसको पेड़ में लगा सकते हैं, उसका फ्लावर बना कर सकते हैं, मे बी यू कैन यूज इट, रीयूज, रिसाइकल, यू विल राइट, यू विल से सो मेनी थिंग्स यू विल से, है ना। दैट टू कुछ कुछ बेकार होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ कुछ ऐसे फालतू होगा, यूजलेस होगा, कुछ एक बहुत ही क्रिएटिव पॉइंट होगा, है ना। लाइक दिस यू विल से दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिकॉज अगर वो बोलेगा नहीं मुझे वही बताओ जो 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 होना चाहिए, देन इन दैट केस क्रिएटिविटी इज लॉस्ट। व्हाट इज लॉस्ट? क्रिएटिविटी। एंड ऐसे में क्या, क्रिएटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप करते हो ना, जब भी आप ऑर्गेनाइज करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी खो जाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी क्या है कि एनी थॉट विच कैन कम इन योर माइंड, है ना, विच इज नोवाइस, कोई नया चीज आएगा। लेकिन व्हेन यू आर फिल्टरिंग इट ऑन द बेसिस कि मुझे वही थॉट चाहिए जो प्रैक्टिस में हो सकते हैं, जो रेगुलर हो, और जो बहुत ही मतलब जो मैंने पढ़ा हो, लिखा हो, वही हो, देन योर माइंड इज फिल्टरिंग ऑल द, है ना, ऑल द कीवर्ड्स, और जो भी उसको लगता है कि ये यूजफुल नहीं है, देन you are getting filtered information, and with the less of creativity and more of the bookish knowledge, और more of जो आप जानते हो कि ऐसे जनरल चीजें आपको भी पता है, तो आपकी क्रिएटिविटी लेस हो जाती है, रिजल्टिंग इन यू विल नॉट गिव एनी इनोवेटिव आइडिया, राइट। सो क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे कॉलेज में आते हैं और फिर क्या करेंगे, वो दे विल से नो, ये फिर वो करेंगे कि हो गया, क्लास ने 20 पॉइंट बता, 10 पॉइंट बता दिए, अब सब शांत हो जाएंगे, एंड ही विल से अच्छा ये कर सकते हैं, ये जो 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 पॉइंट 2 है उतना अच्छा नहीं है, 2 वो भी अच्छा नहीं, 3 भी नहीं अच्छा है, 4 ठीक है इनोवेटिव, 5 काफी इनोवेटिव है, 6 अच्छा नहीं है, 7 अच्छा नहीं है, 8 भी नहीं अच्छा है, 9 बहुत अच्छा है, 10 बहुत अच्छा है। तो क्या करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखेंगे, एंड ही विल टेल यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक ए इको फ्रेंडली प्लास्टिक बेस्ड ऑन दिस, और ये पांचों निकालेंगे, दिस विल बी द प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड वेरी गुड आइडियाज, ठीक है। ऐसे होता है, दिस इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिकॉज ऑर्गेनाइज आप जहां किए, आपने फिल्टर कर दिया, उसको फिल्टर कर दिया, तो आपके पास क्रिएटिविटी चली गई, इनोवेशन चला गया, वो आएगा जो बुकिश होगा, जो आपने पढ़ा होगा, जो आपको बहुत ज्यादा याद भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप जब फिल्टर लगा दो तो बहुत चीज रिकॉल नहीं हो पाएगी, जब आप खुल के पूरा रिकॉल करोगे तो सब रिकॉल होगा, एनीथिंग। तो मेरा कहना है कि डू अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग अनऑर्गेनाइज्ड ही होता है, ऑर्गेनाइज नहीं करना, ऑर्गेनाइज करोगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ हुआ, वो तो रिकॉल हुआ, कि यू आर गोइंग टू रिकॉल कि मैं क्या लिखूं इंट्रोडक्शन में, मैं क्या लिखूं कंक्लूजन में, बेस्ड ऑन माय प्रीवियस नॉलेज, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड ही होता है, ऑर्गेनाइज किया आपने तो आपका सब बेकार हो गया। मेरा ये कहना है कि देखो, ये सब छोटी छोटी बातें आपका बहुत मैटर करता है, ये आपका कंटेंट या तो अच्छा कर देगा या खराब कर देगा, और बेस्ड ऑन कंटेंट यू विल राइट डाउन द एसे, ठीक है। सो अनऑर्गेनाइज करना मतलब देयर इज इन योर माइंड, यू शुड हैव ए क्लियर थॉट कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, जो माइंड में आएगा मैं लिखूंगा। जैसे कि उन्होंने बोला एक ने कि राइट साइड में लिखते थे करंट और लेफ्ट में, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं सोचना कि करंट कहाँ लिखना, राइट, जो आए यू कीप ऑन राइटिंग, जो भी थॉट्स आए अनऑर्गेनाइज वे से यू कीप ऑन राइटिंग, ऐसे लिख लिया सारा, जो जो कीवर्ड्स आया, फिर कीवर्ड्स को भी लिंक कर सकते हो कि ये वहां है, ये इधर है, इसमें ये वो है ना, ये सब डाल दिया। अब यू गिव ऑलमोस्ट 10 टू मैक्सिमम क्या 15 मिनट्स, कोशिश करो कि 10 से 15 मिनट दो, 15 मिनट मैक्सिमम देना, टू गेट इन ऑल द कीवर्ड्स, जो भी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया है वो 15 मिनट के अंदर हो जाए, 10-12 मिनट में हो जाता है, मोटा मोटी हो जाता है, 15 मिनट तक मान लो, ठीक है। देन based on this keywords you think, now you read the topic again and find out कि ये मेरा पार्ट जाएगा इंट्रोडक्शन में, this also can go in the introduction and this also can go in the introduction,
तो आपने इसको लिख दिया यहाँ पे, इंट्रो इंट्रो लिख दिया कि यहाँ इंट्रो में डालना है इसको। फिर आपने बोला ये वाला पार्ट तो कंक्लूजन में ठीक है, ये वाला पार्ट भी कंक्लूजन में ठीक है, और ये वाला पार्ट जाएगा बॉडी में, और ये जाएगा बॉडी का पहला पार्ट में जाएगा, ये दूसरे पार्ट में जाएगा, इतना इतना जाएगा तीसरे पार्ट में। लाइक दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर जो कीवर्ड्स है कि इसको किस ऑर्डर में लिखना है। एक्सटेंशन तो पढ़ ही लोगे, कीवर्ड समझा ही लोगे, राइट? एंड समबडी हैज आस्क्ड मी दैट कितने कीवर्ड्स लिखने हैं। देयर इज नो लिमिट टू इट। अब डिपेंड करता है आपको कितने याद है, ठीक है, कितने याद है, कितने रिकॉल हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट यू विल राइट डाउन द कीवर्ड्स। ओके, सो यू विल राइट डाउन मेनी कीवर्ड्स, जो भी लिख लेंगे आप 1 2 3 4, यू विल ऑर्गेनाइज देम, राइट? और फिर उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स यू विल भाई इंट्रोडक्शन मिला लोगे, 2 3 इंट्रोडक्शन मिला लिया, फिर कुछ सोचा, एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द इंट्रोडक्शन। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1 आवर 15 मिनट्स में यू हैव टू राइट होल एसे, ठीक है? आपको 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 काफी लोग बोलेंगे कि इसमें तुम ले लो, क्या बोलते हैं, 30 मिनट्स ले लो, हाफ एन आवर, ठीक है? काफी लोग बोले होंगे, अनिका मैडम ने भी बोला ही होगा। लेकिन मेरा कहना है कि 30 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि देन यू हैव टू राइट, आपको इतना लिखना भी है, उसमें बीच बीच में सोचना भी पड़ सकता है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट कंक्लूजन ऑल्सो। तो इसमें 1 आवर में थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा लिखने में, इफ यू वांट टू कंप्लीट होल होल पेपर। आपको 4 ही पन्ना लिखना है, 5 ही लिखना है तो हो जाएगा, लेकिन आपको इफ यू वांट टू फुल होल पेजेस, मेरा तो कहना है कि इसमें कितना पन्ना भरना है, आई विल टेल दैट आल्सो। तो 1 आवर में आपको थोड़ा लेस पड़ेगा, बट 1 आवर 15 मिनट्स में विल बी ऑलमोस्ट सफिशिएंट कि मेरा पूरा ऐसे हो जाएगा, एंड टू एंड कवरिंग ऑल पेजेस। ओके, ठीक है? तो 30 मिनट्स बहुत ज्यादा, क्यों 30 मिनट्स क्या सोचना, 15 मिनट 10-12 मिनट में जो भी आप अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, व्हाटएवर अनऑर्गेनाइज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग यू विल डू, विदिन 10 to 15 10 to 12 मिनट्स इट विल कम। ओके, क्लियर है? तो ये है, हाँ ठीक है। तो सर एक चीज और थी, जब एससी को मतलब एक फ्लो चल रहा है, पर जैसे 1000 to 1200 वर्ड्स होते हैं, 10 पेजेस कंप्लीट करने हैं, तो मतलब बीच में ना ऐसा लगता है कि मतलब ना बहुत ज्यादा मतलब ना एकदम से जैम हो जाता है दिमाग में, कि मतलब पूरा टॉपिक ही दिमाग से उड़ जाता है, मतलब उड़ता तो नहीं है पर ना एकदम से कि क्लूलेस हो गए कि मतलब कि टॉपिक क्या था, क्या लिख रहे हैं, तो वो बीच में से वो छूट जाता है, लिंक छूट जाता है अगर कहें तो लिखने वाले का। तो ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, टॉपिक से मिस हो जाता है, टॉपिक से मिस हो जाता है ना सर हाँ, वो एकदम से तो दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब एग्जाम डे में भी एग्जैक्टली होगा तो यही होगा, क्योंकि स्ट्रेस भी होता है, मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब फ्रेश माइंड से ही सब कुछ होता है। तो उस चीज को कैसे हैंडल करें कि हाँ जैसे दिमाग में एकदम से मतलब हाथ रुक गया। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इफ आई से मुझे याद है वैल्यू और ह्यूमैनिटी वाला लास्ट ईयर का किसी का टॉपिक था, उस पे लिखते लिखते वैल्यूज और ह्यूमैनिटी को मतलब एक्सप्लेन करते छठे पेज के बाद में आई रिमेम्बर क्लियरली, तो छठे पेज के बाद में मैं ये भूल गई थी कि वैल्यूज और ह्यूमैनिटी को मतलब मैं लिख क्या रही हूँ और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इससे मैं यही भूल गई थी कि मैं कंट्रास्ट दे रही हूँ इसमें या क्या, तो ये इसको कैसे हैंडल करें। ये भी मैं बताने वाला था, इसको बोलते हैं डिविएशन इन द एसे, डिविएशन, ठीक है? तो वो भी मैं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, ठीक है? तो अभी क्या है, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको 10 मिनट्स 10 से 12 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मैक्सिमम 15 मिनट, सो दैट यू हैव 1 आवर 15 मिनट्स। क्योंकि देखो 1 आवर कम रहता है ना, ये आपको पता चल जाएगा, जो लोग लिखे हैं उनको पता है 1 घंटे में ऐसे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। और रही बात वर्ड लिमिट की, 1200 वर्ड्स, मैं ऑलरेडी, आप लोग मेरे पास पहले से कर रहे हैं, आपने 3 वेबिनार अटेंड किए हैं, ये चौथा वेबिनार है ना? और रिगार्डिंग द एसे आपने जीएस का कर लिया है, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, जो वर्ड लिमिट फॉलो, वर्ड लिमिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज टाइम लिमिट एंड द नंबर ऑफ पेजेस यू हैव, बिकॉज एज अ टाइम लिमिट एंड द नंबर ऑफ पेजेस, ये ऑटोमेटिकली आपका वर्ड लिमिट कंट्रोल कर लेते हैं। आप 1200 वर्ड कोई नहीं गिनने वाला, नोबडी इज देयर टू काउंट, इवन एग्जामिनर नॉर यू, और जो गिन रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफी कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। Nobody has been penalized on the basis of word limit, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी एक्सीड करोगे, 1200 से 1300 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, और 1200 से लेकर 1400 भी एक्सेप्टेबल है। प्रॉपर ये है कि नोबडी इज देयर यूपीएससी टू काउंट योर वर्ड्स, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? और ना ही पॉसिबल है स्टूडेंट के लिए, अगर वो काउंट कर रहा है तो ही जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। सो आई एम टेलिंग दैट इट इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ पेजेस एंड द टाइम यू हैव। अब 1 आवर 15 मिनट की लिमिट लगा दी और आपका पेज है, आपके पास आगे पीछे 10 पेज है, तो और हो गया टाइम, अब हो गया, इसी टाइम में इतने पेज भरने हैं,
वर्ड लिमिट अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड लिमिट वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, बात ये क्या है, इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 120 110 या जो एवरेज जो स्कोर आपका आता है उससे ज्यादा जाते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है लास्ट टाइम भी, कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का चलता है। जो एग्जाम में क्या है, एग्जाम में देयर इज ऑलवेज फाइट बिटवीन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अब क्वालिटी ऐसी भी नहीं हो कि एकदम बोगस है, क्वालिटी में एक एवरेज मिनिमम बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, एंड क्वांटिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचो कि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है और आप क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छा लिख सकते हो 100 वर्ड में, और एक लड़का है वो क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज आप ही का जैसा आपने लिखा वैसे ही लिखा है, पर ही हैज रिटन इन 200 वर्ड्स, किसको ज्यादा नंबर मिलेगा? 100 नंबर, जैसे 100 वर्ड लिखा है सेम सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, और जिसने लिखा है 200 वर्ड विद सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, प्राइमा फेसिया एग्जामिनर देखते किसको ज्यादा नंबर देगा? 200 नंबर, 200 वर्ड को ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? हेलो, एनी डाउट? अरे आप लोग पहले अटेंड किए ना 2-3 वेबिनार, तो उसमें क्या बताया था मैंने? क्वांटिटी बिगेट्स क्वालिटी। ठीक है, पर क्वालिटी खराब नहीं हो, मतलब इट शुड बी ऑन द एवरेज क्वालिटी। इफ यू आर राइटिंग 100 वर्ड्स मींस आपने 2 पेज में 1 पेज भरा है या 1.5 पेज भरा है, और किसी ने दोनों पेज भर दिया है और उसने वर्ड लिमिट थोड़ा ज्यादा लिखा है, उसने सब चीज आपने लिखा उसको उसने एक्सपैंड भी कर दिया है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा नंबर मिलेगा कंपेटिवली, इवन इफ इट इज हाफ मार्क या 1 मार्क। अब जो भी टॉपर्स को अभी देखेंगे वो मोस्टली सारे पेज भरे रहते हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट वेबिनार में। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल से डिस्कस किया हुआ है। तो कहने मतलब ये है कि आप ज्यादा एक्सीड कर भी नहीं पाओगे, 150 वर्ड है, आप 200 ज्यादा लिख नहीं पाओगे, पेज ही नहीं और टाइम भी नहीं है। पर स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपको ज्यादा लिखना है, राइट, ये सब उसी में आ जाएगा। और जब लास्ट के क्वेश्चन होंगे तो ऑब्वियसली आप कम लिखोगे और उसमें वर्ड लिमिट अपने आप ही उस लिमिट पे आ जाएगी जितनी है या उससे कम हो जाएगी, बट यू डोंट हैव मच कंटेंट टू राइट। ठीक है, तो इन दैट केस कि आपको अगर जितना आप लिख पाएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि क्वालिटी आपकी बोगस है, मतलब यू नॉट जस्ट राइटिंग अननेसेसरी कंटेंट, ये नहीं करना है आपको। सेम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, आप उसको ट्राई टू कंप्लीट इन फुल पेजेस, सारे पेज में कवर करना। वो सब मैंने डिस्कस किया है, डायग्राम वायग्राम ये वो। ठीक है, तो ये चीज हुआ। सेकेंड चीज है मैं जो बताने वाला था इसमें, कि आपको ट्राई टू फिल ऑल पेजेस, है ना, और वो आपका 1 घंटा 15 मिनट में ही हो पाएगा, राइट। 1 घंटे में थोड़ा सा कम चांस है बिकॉज ऑफ लेसर टाइम, और जहां टाइम कम हो जाएगा तो आपके वर्ड्स अपने आप ही 1200 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 1200 ही नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, फॉरगेट अबाउट टू कंप्लीट होल पेजेस और एक्सीड की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो जो फास्ट राइटर है वही कर पाएंगे, जो स्लो राइटर है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा। नाउ कमिंग टू योर क्वेरी अबाउट डिविएशन इन द एसे, डिविएशन, हालांकि मे बी यू हैव अटेम्प्टेड माय लास्ट किया था सर। मेरे को ये डाउट था कि जैसे 12 पेजेस मिलते हैं और इसके अलावा ना पेपर के आखिरी में रफ पेजेस भी होते हैं। हाँ, तो इससे बढ़िया ये है ना, अगर मान लीजिए हमारे को हम सोचने में थोड़ी ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो एक पेज अगर हम रफ यूज करेंगे तो 10.5 पेज में फिर ऐसे लिखना होगा, तो क्वांटिटी भी पूरी हो जाएगी और क्वालिटी भी हो जाएगी। हाँ, वो तो एक पेज तो रफ में जाना ही जाना है, नो डाउट अबाउट इट, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो रफ में हो गया तो रफ हो गया, हाँ वो कर सकते हो, बिल्कुल करना ही करना। पीछे वाले रफ में भी यही वाला रफ यूज करें ना? कौन सा रफ? पीछे वाला ही करना है, पीछे वाला करना है क्या? हाँ, कहाँ का सर करते हो? पीछे एक अलग से रफ वर्क दिया रहता है, मैंने तो हमेशा उसी मतलब कि उसी में करती हूँ मैं, पीछे जो लिखा रहता है स्पेस फॉर रफ, उसी में करती हूँ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक्चुअली कि ये वाला जो बेसिकली जो दिया होता है ऐसे लिखने के लिए, उस वाले पेज में भी कर सकते हैं क्या रफ, मतलब लास्ट मतलब पहला देखो इसमें ऐसे क्या शुरू है, मतलब चल टेल यू, उसमें जो लास्ट पेज दिया होता है वो एक्चुअली क्या सेकंड ऐसे के लास्ट में होता है, राइट, सेकंड ऐसे के लास्ट में होता है, ठीक है ना, आवाज आ रही है? हाँ, सेकंड ऐसे के लास्ट में होता है, तो सेकंड ऐसे के लास्ट में चूंकि यू नीड 1 पेज, आपको पूरा पेज चाहिए, एक पेज में आप 2 ऐसे का नहीं कर पाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट, तो आप सेकंड ऐसे का लास्ट पेज यूज कर लीजिए, और जो फर्स्ट ऐसे है उसका भी लास्ट पेज आप यूज कर सकते हैं। और उसका मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड ऐसे के पूरे होने के बाद ना 3-4 रफ पेजेस भी होते हैं। 3-4 होते तो आप यू कैन यूज इट,
क्योंकि मेरे टाइम में क्या होता था ना, मेरे टाइम में एक ही पेज होता था लास्ट में और उस पे रफ लिखा होता था, तो हम लोग एक तो वो यूज कर लेते थे और एक अपना फर्स्ट ऐसे का लास्ट पेज। यस सर, 3-4 होते हैं और उस पे लिखा आता है स्पेस फॉर रफ वर्क, उस पे क्लियरली लिखा होता है, अब तो उन्होंने पेज इसलिए बढ़ा मैं दिया, पूछ रही थी कर सकते हैं, फिर तो कि अच्छा करते हैं। पहला ऐसे जब खत्म होगा और उसके बाद रफ, तो कुछ मतलब गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि इसको अलग से पीछे दिया हुआ है, इसके बाद भी इसने एक पेज यूटिलाइज कर दिया। नहीं, लिसन टू मी, क्योंकि मेरे टाइम केस था वो मैं बता रहा हूँ। मेरे टाइम में क्या था कि एक ही पेज मिलता था, लास्ट पेज में होता था, ठीक है। तो लास्ट पेज वाला जब आपने लिख लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, तो ओवर हो गया। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक पेज और चाहिए, तो एक पेज आपको मिलता था फर्स्ट जो ऐसे है उसका लास्ट पेज। लेकिन इफ यू आर गेटिंग 3 पेजेस या 2 पेजेस इन द एंड, तो आप रफ जो लिखा है ना उसी को यूज करो, डोंट यूज दिस वन, जो आपको फ्रेश पेज है उसको मत यूज करो, ऐसे वन का, ठीक है। क्लियर है ना? सर क्लियर है। जब 2-3 पेज है तो क्या दिक्कत है ना? ओके, तो वो तो यूपीएससी सीधे कभी चेंज कर सकता है कॉपीज का फॉर्मेट। नाउ कमिंग टू द डिविएशन। तो डिविएशन में क्या है कि यू आर टॉकिंग अबाउट कि 4 पन्ना लिखे हैं, फिर उसके बाद डिवेट हो गया, यू आर राइटिंग समथिंग एल्स व्हिच इज मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या लिख गई क्या नहीं कर गई। तो उसमें क्या है ना, डिविएशन इज पहली बात, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग यू विल नो कि मेरा फ्लो कैसे बढ़ेगा, कैसे मेरा ये ऐसे फ्लो करेगा। यू विल हैव ए बेसिक आइडिया और एक बर्ड्स आई व्यू हो जाएगा कि मेरा ऐसे मूव करेगा, ठीक है। डिविएशन का चांस वहां से बहुत कम हो जाता है, लेकिन इनफैक्ट दोबारा भी डिविएशन हो सकता है व्हाइल राइटिंग द आंसर, व्हाइल राइटिंग द पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, दूसरे से तीसरे पैराग्राफ, तो उसमें डिविएशन हो सकता है, हो जाए, राइट। सो इन दैट केस यू हैव टू कीप लुकिंग टू द टॉपिक ऑफ द एसे। आपको जैसे जैसे आप लिखोगे ना, बीच बीच में टॉपिक देखते रहो, ठीक है। जब बार बार टॉपिक देखोगे तो आपका माइंड टॉपिक के हिसाब से सिंक रहेगा एंड यू विल बी नोइंग दैट यू आर इन द सेम ऐसे, आप पैराग्राफ आपका चेंज भी हो रहा है, तो यू आर नॉट डिविएटिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक। एंड वन मोर थिंग दैट इफ यू आर लुकिंग इनटू द टॉपिक अगेन एंड अगेन, उससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है कि यू विल बी, है ना, गेटिंग मोर, कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ इनोवेटिव आइडिया भी आपको मिलता रहेगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज द वर्ड्स, जो ऐसे में जो टॉपिक होगा उसका जो वर्ड्स होगा, ट्राई टू यूज इट इन द एसे, अंदर भी यूज करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, तो एग्जामिनर विल नो दैट यू आर एग्जैक्टली ऑन द टॉपिक। बहुत लोग क्या करते हैं कि दे आर नॉट यूजिंग द सेम वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ एन एसे इन द एसे इटसेल्फ, और दे आर यूजिंग सम सिनोनिम ऑफ इट, उसका कुछ दूसरा वर्ड उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। You have to use the exact word या exact keywords given in that topic in your essay. This will help examiner find out that you are on the same topic and you're writing as per the topic, you're not deviating at all. तो ये ध्यान रखना है, use the word from the essay in your answer। और मैंने ये चीज बताया है क्वेश्चंस के लिए भी बताया, ठीक है। हाँ जी सर। सर और एक चीज और थी, तो ऐसे में जैसे अंडरलाइन करते हैं, वो साथ के साथ ही अंडरलाइन करते हुए चले, या मतलब कि फिर वापस से आके नहीं, अंडरलाइन करना वापस चाहिए? टाइम नहीं मिलेगा, वापस यू वोंट हैव टाइम टू रीड होल ऐसे, फिर अंडरलाइन और ये सब में मिलेगा नहीं। साथ के साथ करोगे तो आपको बहुत अवेयर रहोगे ना कि मैं क्या लिख रही हूँ, यू विल बी मोर अवेयर, अवेयर भी रहोगे और उसी साथ अंडरलाइन कर लोगे कि ये कीवर्ड यहाँ पर है। बार बार पूरा ऐसे पढ़ नहीं पाओगे, 1200 वर्ड 1500 वर्ड अगर लिख रहे हो, दो, है ना, इतना बड़ा लिख रहे हो, तो कहाँ से उसको दोबारा पढ़ पाओगे, लास्ट में छूट जाएगा, मतलब छूटने की हालत में हो जाते हैं सारे, ठीक है। फिलोसफिकल ऐसे पे आओगे वहां टाइम लगेगा ना ज्यादा, ठीक है। हाँ जी तो सेम टाइम यू हैव टू अंडरलाइन इट, और ये क्वेश्चन पे भी है इन जीएस पेपर आल्सो, सेम टाइम यू हैव टू अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन द कीवर्ड्स व्हाइल राइटिंग द आंसर, है ना। डू नॉट ड्रॉ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, फिगर्स इन द एसे। इसका बहुत ज्यादा ये यूज नहीं है, कोई कोई एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको, कोई कोई बोलेगा नहीं मैंने ड्रॉ किया था, मेरे तो 130 आए थे, बट सी दीज आर द एक्सेप्शंस, कोई एग्जामिनर ने चेक किया उसे नंबर दे दिया, पर इन जनरली मैक्सिमम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। बट आई कैनॉट रिकमेंड टू यू कि आप ड्रॉ करो, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल 70-80% लोग ऐसा करें और उनके नंबर अच्छे आए, राइट। कोई 5% 10% लोग कर रहे हैं, तो वो एक एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि मेजरली लोग नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके भी बहुत अच्छे नंबर हैं, राइट। सो इट कैनॉट बी गिवन एज अ रूल अंटिल कुछ सालों में यूपीएससी अगर डायग्राम पे नंबर देने लग जाएगा तो ये रूल बन जाएगा कि अब नहीं, अब ये अपडेशन ये है, नाउ यू आर गोइंग टू यूज द डायग्राम्स, पर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन some 10% of the candidates are doing so and they're getting good marks, मतलब वही मार्क्स आ रहे हैं जो जो लोगों ने नहीं यूज किया उनके भी आ रहे हैं, ठीक। फ्लो चार्ट नहीं यूज किया तब भी आया है, लेकिन डायग्राम का ऐसे में बहुत रिलेवेंस नहीं है, इट इज नॉट ए जीएस आंसर, इट्स एन ऐसे, ओके। तो उसको आप छोड़ देना। सेकेंडली है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ द, यू हैव टू राइट द इनोवेटिव
सब हेडिंग। सब हेडिंग आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट माय जनरल सजेशन इज दैट आप सब हेडिंग करो, 2 से 3 कर सकते हो या मैक्सिमम 4 कर सकते हो। डोंट पुट द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, पुट द सम इनोवेटिव सब हेडिंग। ऐसे नहीं कि द रीजंस ऑफ दिस, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, और फिर क्या इम्पैक्ट ऑफ दिस, ऐसे नहीं। दिस इज वेरी पुअर सब हेडिंग। भाई ऐसे इज व्हाट, ऐसे की खासियत क्या है? इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक, क्रिएटिविटी, फिर क्या होता है उसमें? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर होता है एक। तो ये सब इसकी खूबी है। तो इनोवेशन ही नहीं है, जस्ट एक जीएस की तरह आंसर लिखा हुआ है, दैट विल नॉट बी अवॉर्डेड गुड मार्क्स, ठीक है। वो एग्जाम में बोल जाए कोई इनोवेटिव हेडिंग मतलब रखना चाहिए। जैसे हिंदू न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं ना, उसमें 2-3 हेडिंग होती है, थोड़ी इनोवेटिव होती है। यू कैन यूज सच टाइप्स ऑफ सब हेडिंग्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट कि भाई लॉजिकल आपका फ्लो करे। जो ये पैरा खत्म हो तो दूसरा पैरा वहां से पिकअप करके वो आए, फिर उसके बाद यहाँ से पिकअप करके इधर चले, मतलब वो एक लॉजिकली फ्लो करे। एक जैसे नदी बहती है ना, सोर्स टू माउथ, है ना, तो जैसे बहती है तो वो कैसे भी बहती है तो उसका फ्लो बना रहता है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता है। तो वो चीज हमको जानना है, ब्रेक नहीं हो उससे, मेरा एक फ्लो में रहे। और ना ही आपको यूज करना है पॉइंट फॉर्मेट, 1 2 3 4, बिकॉज जहां पॉइंट यूज करेंगे दिस विल क्रिएट ए ब्रेकेज इन द एसे। ये पूरा ब्रेकेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो एसओ, जो एसे का जो फ्लो पार्ट है ना, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज एसे इज व्हाट, एसे इज क्या है कि आपका ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है विद इनोवेटिव, इनोवेटिव और क्या बोलते क्रिएटिव कंटेंट है, जो कि एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया गया इन द फॉर्मेट ऑफ, है ना, फ्लो, एक वो एक प्रॉपर फ्लो में है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू हैव सेपरेट मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन अच्छा कंक्लूजन। सर, हाँ, इसका अलग मार्क्स है, हाँ। हाँ जी सर, जैसे हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो सर इंट्रोडक्शन की लेंथ अगर एक पेज से बढ़ के दूसरे पेज पे चली जाए 1 या 2 लाइन, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इंट्रोडक्शन फिर वो तो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। तो अगर अगले पेज पे इंट्रोडक्शन चल जाए 1-2 लाइन तक, तो वो चलेगा या फिर वो मतलब कि वो बुरा लगेगा, हमें पहले ही शीट पर ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं नहीं, देखो अब मैं बता देता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन का मीनिंग नहीं है, जैसे ये पेज है, इट डजंट मीन कि मैं एक ही पैराग्राफ लिखूंगा इंट्रोडक्शन। इट डजंट मीन कि इंट्रोडक्शन एक पैरा हुआ। इंट्रोडक्शन कैन बी 2-3 पैराज ऑल्सो। आप जब लिखो इंट्रोडक्शन, तो आपने ये लिखा इंट्रोडक्शन, फिर आपने इस इंट्रोडक्शन को यहाँ पिकअप किया, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ये लिखा, फिर आपने दूसरे पेज में भी लिखा इंट्रोडक्शन, यहाँ अब खत्म हो गया, मतलब आपने लगभग 3 पैरा यूज कर लिया। देन यू आर राइटिंग द बॉडी। तो जब आप बॉडी पे आते हो ना, यहाँ पर बॉडी पे, तो हाँ तो जी। द एक्चुअल शिफ्ट इन द कंटेंट इज सीन। जो कंटेंट में शिफ्ट होता है ना, वो दिखाई पड़ जाता है। जो पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या है ना, ये आपस में बंधे होते हैं, मतलब इनका एक स्टोरी लाइन होता है, या फिर एनेक्डोट है, इधर सम स्टोरी से स्टार्ट किया है, या मे बी यू हैव स्टार्टेड विद सम एग्जांपल, है ना, बेस्ड ऑन द टॉपिक, कुछ भी किया, तो ये आपस में बंधे हुए दिख रहे हैं। तो कितने भी पैरा में आ जाएंगे, 2-3 पैराग्राफ ठीक होता है, ज्यादा पैराग्राफ नहीं, 2 से 3 पैराग्राफ ठीक होता है। और उसके बाद जब आप चेंज करेंगे टॉपिक को, जब आप आ जाएंगे बॉडी में, इट इज ऑटोमेटिकली गेट शिफ्टेड इनटू द पार्ट ऑफ बॉडी, और वो मालूम चल जाएगा कि नाउ द बॉडी स्टार्टेड। और ऐसे ही होता है कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में क्या होता है, जब आपकी बॉडी खत्म होगी तो भी यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा, जब आप कंक्लूड करें। कंक्लूजन ऑल्सो कैन बी रिटन इन मोर देन 2-3 पैराग्राफ्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो भी आपस में ऐसे बंधे होते हैं, काफी ऑर्गेनाइज होते हैं, उससे मालूम चलता है कि कंक्लूड हो रहे हैं, चालू हो गया है कंक्लूजन, ठीक है। आपका कंटेंट बताता है कि अब कंक्लूजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, हाँ जी। क्लियर है ना ये तो। ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अगले पेज में भी लाओ। मैं तो वैसे 1.5 पेज लिखता था इंट्रोडक्शन का, 2-3 पैराग्राफ में, ठीक है। हाँ जी। 130-135 आए हुए मेरे लगातार, हाँ जी। जो जब पहले 130 नहीं आते थे, 110-120 ही रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं, सब लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ये है टॉपिक, तो ये हुआ। देन कमिंग टू द समथिंग मोर अबाउट दिस ऐसे, कि भाई फिलोसफिकल में क्या करना है, क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, है ना, तो वो हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। तो ये तो हुआ जनरल ऐसे का। जनरल ऐसे में एज पर द टॉपिक यू कैन यू आर राइटिंग। नाउ कमिंग टू द फिलोसफिकल। फिलोसफिकल में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिलोसफिकल का, कि यू हैव टू चूज द टॉपिक, चूज द टॉपिक, क्योंकि यही सबकी
सबकी फाइट है, क्योंकि हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच वन, है ना, कितना समझ पा रहे हो, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू चूज द राइट टॉपिक जो आपको पूरी तरीके से ग्रास्प हो गया है, एंड यू नो दैट यू हैव अ सफिशिएंट कंटेंट टू राइट ऑन इट, राइट, वो आप चूज कर पाओगे। तो इसमें एक क्या बोलते हैं 20% गेम तो ये है कि चॉइस क्या है, राइट। तो आप पहले अच्छे से समझ के यू चूज द राइट टॉपिक, उसके कीवर्ड को ब्रेक करो, उसको समझो, अगर कोई कोट है तो उस कोट से रिलेट करो, किसने बोला अगर वो पता है तो आपका एक काफी चीज पकड़ा जाएगा। नहीं ये पता है किसने बोला है तो अंडरस्टैंड इट बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, ठीक है। आइदर इट इज ए क्वेश्चन मार्क और नहीं भी है तो हमें क्या करना है एक्सप्लेन, क्वेश्चन मार्क है तो हमको दोनों पार्ट एक्सप्लेन करना है, फॉर एंड अगेंस्ट, राइट, इस तरह से हमको सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। तो मीनिंग एंड एसेंस और द सब्सटेंस ऑफ द टॉपिक यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब टॉपिक चूज कर लोगे, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 चूज किया, देन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अनऑर्गेनाइज्ड स्टार्ट होगा, और इट विल टेक अराउंड, वही हम बोल रहे हैं 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि फिलोसफिकल टॉपिक में यू नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, की यू नेवर नो कि आप क्या लिख रहे हो, क्या क्या आपको एग्जांपल्स नहीं आए, ध्यान में नहीं आए, सो ऑन द वे ऑफ राइटिंग ऐसे यू कैन हैव कुछ एग्जांपल याद आ गए तो यू कैन राइट डाउन एग्जांपल या जो भी कंटेंट है, ठीक है। तो ये आपको उस समय जैसे करते हैं वैसे आता जाएगा। तो ये तो एक बेसिक हुआ। अब इसमें टॉपिक को जो आप चॉइस करोगे, जो टॉपिक का आपको चॉइस है वो बेस्ड ऑन एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होना चाहिए। पहला कि द टॉपिक विच इज बेटर अंडरस्टूड, मतलब आपके द्वारा you have understood the topic clearly, understood it, and then you are going to write the essay. Now also you know there are more dimensions you can cover, you know that there are more dimensions and you can cover them, and you know that apart from the content, a good content, you have more examples to cover up, examples है आपके पास, वो आप लिख सकते हो। तो ये चीज आपको you have to recall it कि भाई मेरे पास ये है, इतना इंफॉर्मेशन है, या आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास सफिशिएंटली कंटेंट है। अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, विद इन 2 मिनट्स यू विल नो कि आपने टॉपिक रॉन्ग चूज कर लिया है, आपको नहीं पता चल रहा, नहीं समझ आ रहा है, देन यू मूव टू द अनदर टॉपिक कि ये मुझे नहीं क्लियर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो ये चीज है। नाउ फिलोसफिकल टॉपिक का हम पहले देखें, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू इज बेसिकली द जनरल आउटलाइन। इस पॉइंट, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एज पर द क्वेश्चन आज यू कैन राइट डाउन द एसे, ठीक है। जैसे पहला जो डेफिनेशन होगा, तो आप टॉपिक समझ लिए, यू अंडरस्टूड एसेंस एवरीथिंग। नाउ देयर कैन बी डेफिनेशनल अप्रोच और यू कैन से डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यू आर गोइंग टू डिफाइन वट एवर इट इज रिटन, कोई मीनिंग, कोई स्टेटमेंट कोट है, देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, यू वांट टू रिलेट इट विद सम इवेंट और रिलेट विद सम स्टोरी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, नहीं क्लियर है तो क्या करो, डीकंस्ट्रक्ट करो, डीकंस्ट्रक्ट फ्रॉम द टॉपिक। डीकंस्ट्रक्ट मतलब ये होगा कि जो टॉपिक दिया है उसको कीवर्ड्स में तोड़ के उससे उसको तोड़ दो और उससे अपना इंट्रोडक्शन बना दो, ठीक है। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, राइट। और तब भी कुछ ना समझ में आए, क्या करना है, तो कीवर्ड्स को डिफाइन कर दो, है ना। और जो भी यू कैन यूज सम एनेक्डोट्स, ठीक है, तो यू कैन यूज दैट आल्सो इफ यू वांट टू यूज, राइट। सो इस तरह से ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको जैसा कुछ समझ में आ गया, देन यू कैन राइट वेरी गुड ऐसे। नहीं समझ में आया तो दीज आर सम ऑफ द अप्रोचेस, ठीक है। देन कमिंग टू द बॉडी, सी इन द केस ऑफ दिस फिलोसफिकल ऐसे देयर आर वेरियस वेज, बहुत सारे वेज हैं, है ना। क्वेश्चन भी डिपेंड करता है, योर नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपका कितना अच्छा आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आई एम गिविंग यू वेरियस, है ना, इंफॉर्मेशन, मतलब आपको मैं वो दे रहा हूँ, क्या वो इनपुट्स दे रहा हूँ कि इस इनपुट्स को भी यूज कर सकते हो, यू कैन मेक ए गुड फिलोसफिकल एसे। फर्स्ट क्या होगा, कीवर्ड अप्रोच है, कीवर्ड अप्रोच, ठीक है। जो कीवर्ड्स दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन के हिसाब से, उसके हिसाब से आप बॉडी में कीवर्ड
जो चीजें हैं उसको आप लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन पे बेसिस पे ऐसे फ्रेम हो सकता है, नहीं तो कुछ पार्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है, डिवाइडिंग अप्रोच। क्या करिए आप, यू डिवाइड द एसे इनटू वेरियस पार्ट्स, उसका उसका प्रेजेंट स्टेटस, पास्ट, फ्यूचर, इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन जहां जहां डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है। नहीं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू कि ये भाई इसका इसका एंटीसीडेंट क्या था, कॉन्सिक्वेंट क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है, इस पे डिवाइड कर सकते हैं। अगला क्या है, लेयर्स अप्रोच। लेयर्स अप्रोच क्या होता है कि उसको अनलेयर करिए, अनलेयर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका, कि जैसे देयर आर वेरियस लेयर अप्रोच को मैं क्या बोलता हूँ, एंटिटी अप्रोच भी बोल सकता हूँ। बेसिकली लेयर अप्रोच में क्या है कि एक एक लेयर आप खोलते जाएंगे, ठीक है, एक एक लेयर आप उसको, जैसे नहीं होता प्याज होता है, तो प्याज ढका होता है, तो एक एक लेयर आप हटाते जाएंगे एंड यू विल गेट टू द कोर। तो तो कोर पे पहुंच जाएंगे, जो कोर आपका होगा फिलोसफिकल टॉपिक में, वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अनलेयरिंग कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वेज। एंटिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, यू कैन टेक एंटिटी इनटू अनदर, उसमें रख लीजिए, एंटिटी रख लीजिए, और में भी स्टेक होल्डर्स अप्रोच। इसमें क्या होता है कि यू विल बी डिवाइडिंग इट इनटू वेरियस एंटिटीज और स्टेक होल्डर्स। जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं तो उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो फैमिली को, है ना, फैमिली से कम्युनिटी तक आ सकता है, रीजन तक आ सकता है, मतलब आप जस्ट उसको एंटिटी बढ़ा रहे हो। पहले फैमिली छोटा सा अप्रोच चलेगा, एक यहाँ पे या इंडिविजुअल अप्रोच कर लिया आप, इंडिविजुअल, देन इंडिविजुअल टू फैमिली, फैमिली टू कम्युनिटी, कम्युनिटी टू रीजन, रीजन से नेशन तक आ गए आप, राइट। यू कैन गो नेशन से, मे बी, और यू कैन कम टू द वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन के ऊपर है ना, अगर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है तो भी हो पाएगा, दूसरा क्वेश्चन है तो वहाँ कुछ और अप्रोच लगेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेक होल्डर अप्रोच लग सकता है, जैसे गवर्नमेंट, कोई ऐसा चीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, देन प्राइवेट से रिलेटेड कुछ कुछ चीज हो सकता है, मे बी समथिंग रिलेटेड विद द सोसाइटी, ठीक है, नेशन, है ना, एंड देन मे बी ये जो स्टेक्स है, जिनके स्टेक्स हैं इसमें, है ना, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सम एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो, एनवायरमेंटल भी आ सकता है ना, इस तरह से यू कैन यूज सच स्टेक होल्डर अप्रोच ऑल्सो इन सच केसेस, ठीक है। एक और, मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग द पेस्टल अप्रोच। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड पेस्टल अप्रोच जो है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये अप्रोच जो है दैट इज मोस्टली सूटेड फॉर द जनरल ऐसे, ये फिलोसफिकल के लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। इवन इफ यू ट्राई टू, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन ओनली यू ट्राई टू गिव इट, एल्स इसको आप फिलोसफिकल में रहन देना। फिलोसफिकल में ये दिस अप्रोच वोंट वर्क, है ना, क्योंकि फिलोसफिकल टॉपिक जो है वो फिलोसफिकल है, मतलब वो जनरल बात नहीं कर रहा है, वो आपको डीप लेवल पे जाना है, उसकी टॉपिक की अनलेयरिंग करनी है, उस पर लिखना है। तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये बहुत ही क्या सेट अप्रोच है, एक ऐसा बोलते हैं जिसको बोलते हैं टेम्पलेट अप्रोच है, तो वो इसमें वर्क नहीं करता है, मोस्टली वर्क नहीं करता है। कोई कोई में कर गया तो कर गया, लेकिन नहीं करता है। तो ये जनरल ऐसे के लिए रखिए, डोंट गो फॉर दिस पेस्टल अप्रोच इन द फिलोसफिकल टॉपिक्स, ठीक है। अब फिलोसफिकल टॉपिक में आप क्या और लिख सकते हो, कुछ भी जो पूछा गया है, यू कैन गो फॉर एंड अगेंस्ट। भाई कुछ तो स्टेटमेंट होगा, उसका कुछ फॉर में होगा, कुछ अगेंस्ट में होगा, ठीक है। और अगर कुछ उसमें ऐसा ऐसा टिल्ट नहीं है, मतलब देयर इज नो टिल्ट, लाइक इट शुड बी फॉर और शुड बी अगेंस्ट, मतलब स्टेटमेंट इज अनबायस्ड टाइप का है, देन यू कैन गो फॉर 75% ऑफ द कंटेंट फॉर और 25% ऑफ द कंटेंट फॉर अगेंस्ट, लेकिन दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो उसका स्पेशल टिल्ट है कि वो फॉर पे ही बात कर रहा है, ठीक है, या फिर वो अगेंस्ट में बात कर रहा है, तो जिस पे ज्यादा बात कर रहा है वो ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, लेकिन अपोजिट कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ऐसे एक्सपैंड कर सकते हो ऐसे, ये तो एक्सपेंशन उनमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम क्या लिखें और, ठीक है। तो फॉर एंड अगेंस्ट, आई एम टेलिंग यू दीज आर द सम ऑफ द हिंट्स कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज मल्टीपल वेज, ऐसा नहीं कि एक ही चीज करना है, बहुत सारी चीजें मिक्स करके कर सकते हो, राइट। देन ऑलवेज ट्राई टू शो डाइवर्सिटी, तब भी डाइवर्सिफाइड ऐसे लिखना है, सेम टॉपिक सेम चीज पे नहीं लिख देना है, टू ट्राई टू शो डाइवर्सिटी एंड इवन डाइवर्सिटी इन द डायमेंशंस आल्सो,
डायमेंशंस में भी डाइवर्सिटी आपको शो करनी है। क्रिएटिविटी रहेगी ऐसे में, बट विथ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ऐसे रहेगा, उसकी तरह आप कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन यूज कोट्स, इवन कोट्स अगर दिया है टॉपिक में ही, बट इंस्टेंट यू कैन यूज सिमिलर कोट्स विच इज हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कोट ऑफ द टॉपिक, है ना। सो कोट्स ऑल्सो यू कैन यूज, इवन if you have expanded the topic into this form, like recent Supreme Court judgments, ऐसा कुछ लगता है कि उसमें लिखा जा सकता है, कुछ बन रहा है माहौल, तो लिख सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स लिख सकते हो, एंड मे बी योर some quotes, some of the great name of the people like विवेकानंद, गांधी, एक्सेट्रा। जो भी आपको लगता है कि अगर वो यूज कर पा रहे हो आपको कंटेंट में, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपका बॉडी लगभग एक्सपैंड हो जाएगा। देन यू आर गोइंग फॉर कंक्लूजन। कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में क्या करेंगे? कंक्लूजन में क्या है कि फिलोसफिकल ऐसे में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता कि आप इसको कंक्लूड कैसे करें, तो इवन यू कैन समराइज कर दीजिए पूरे टॉपिक को, कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत इजी और बेस्ट है। ठीक है, बहुत इजी और बेस्ट है समराइजेशन कर देना। नहीं समझ में आ रहा है कि चलो नहीं समराइज नहीं करना है, कुछ और करना है, तो यू कैन डू कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट कर दी जो भी आइडियाज आपने डिस्कस किया है उसको ब्रीफली और बहुत ही शॉर्ट में यू कैन कंक्लूड, उसको वो करो, कंसोलिडेट कर दीजिए। ठीक है, इवन यू कैन रेनफोर्स सम आइडियाज। कोई आइडियाज आपने डिस्कस किया है या नहीं किया है, इवन यू कैन रेनफोर्स सम आइडियाज ऑफ द कॉन्सेप्ट। रेनफोर्स का मतलब है कि आपने उस पर और एम्फोसिस डाल दिया विथ एक न्यू आइडिया दिखा के जो उससे लिंक है या उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो एनेक्डोट्स तो हो ही सकते हैं। कोट्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, एग्जाम्पल्स कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। इवन द केस स्टडीज ऑल्सो यू कैन पुट, बहुत शॉर्ट में, लेकिन बहुत डिटेल नहीं। इवन रिसेंट जजमेंट एंड ऑल जो भी है वो सेम चीज यू कैन ऑलवेज यूज इट, बट ऑलवेज एंड इन पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट या ऑप्टिमिस्टिक आइडिया पे एंड करना है ना। कोई भी ऐसा ना हो कि इट इज लुक लाइक कि यार क्या बात कर दिया, मतलब नेगेटिव वे में एंड हुआ है, वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब करना है। मोटा मोटी यू हैव टू गो थ्रू ये जो आपका टॉपिक होगा, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर कंटेंट। सो कंटेंट इज द किंग। अगर कंटेंट आपके वीक है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम ए गुड ऐसे। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज सम ऑफ द आइडियाज व्हिच आई एम गिविंग यू। नेक्स्ट essay class is also there. I will discuss some of the more ideas as well as I will discuss some of the essays also. अगर रहेगा टाइम तो मैं ऐसे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या लिख सकते हैं, कैसे हम आइडियाज एग्जामिनेशन में ही फॉर्मुलेट करें, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्या करें। ठीक है, सो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे यही रहने देते हैं। इफ एनी क्वेरी इज देयर यू कैन आस्क मी। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ, नहीं तो और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी? सर एक 2 साल पहले ना एक पीडीएफ मेरे को कहीं से मिली थी, उसके अंदर 50 बहुत फेमस बुक्स की समरी थी। अच्छा, तो वो जो 2020 वाला ऐसे था वो लिखने में बड़ी काम आई, उसमें मार्क्स भी अच्छे आ गए सर। वेरी गुड, कर सकते हो। सर वो बुक्स की समरी थी, उसमें से 2-3 बुक्स मैंने कोट कर दी। हाँ, तो वैसी वाली पीडीएफ से दोबारा मिली नहीं सर। वो जो पीडीएफ, अभी वो पीडीएफ आपके पास है तो शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। इनके पास नहीं है, ये तो बोल रहे हैं। इफ दैट कोट, वो अच्छी किताब है, अगर आपके पास है तो आप शेयर कर दीजिए। नहीं, अभी कोई जाना नहीं है, अभी आप सुन लो जो भी डाउट्स हैं। हाँ, कम अगेन। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं एक जगह पे और ऐसे लिख रहा हूँ, तो सर वहाँ पे मेरे को मना किया गया जैसे जो हिंदी के श्लोक होते हैं या कबीर के दोहे या कुछ भी इस टाइप की जो हिंदी में ही ओरिजिनल है, तो कह रहे हैं कि रादर देन आप हिंदी में लिख लें क्या मीनिंग ही डायरेक्ट है, क्योंकि ये ऐसा इन्फ्लुएंस ना करने को हो जाए कि आप नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया वाला बात ना आ जाए, क्योंकि उनको मतलब उन्होंने भी कहा है कि मतलब इस टाइप का हिंदी वाला कभी मत किया। तो बता दो, मैं समझ गया। ये क्वेरी हर साल ही रहती है मेरे पास कि हम क्या लिखें। देखिए, अगर कोई ऐसा श्लोक है
जो बहुत फेमस श्लोक है, हिंदी में है और मे बी क्या बोलते हैं संस्कृत में है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, कोई भी अच्छा कोई भी श्लोक है, आप इफ यू वांट टू राइट इट। अरे सर जैसे वही था यत नावस्तु पूज्यन्ते वाला है, हाँ, रमन्ते तत्र देवता, ये वाला है। ये तो चलिए बहुत लंबा है। अगर आप लिखना चाहते हैं अर्ध नारीश्वर, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं उनके हिसाब से? नहीं लिख सकते हैं, है ना। सर सर जैसे वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव, हाँ वो वसुधैव हम कुटुंबकम, फॉरेन इसको लिख दें, मतलब उनके हिसाब से आप नहीं लिख सकते हैं, राइट। सत्यमेव जयते, इवन हाँ, टाइगर हिंदी सिंह। नहीं सर जैसे ये सब तो जैसे सर मैं और भी बहुत सारी चीजें लिख देता हूँ हिंदी में। ठीक है, मैं बता देता हूँ, I'll tell। देखिए, एनी फेमस कोट और एनी फेमस जो आइडिया है वो किसी ना किसी लैंग्वेज में होता है, हिंदी में होगा, संस्कृत में होगा, या किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है, कोई भी इंडियन के अदर लैंग्वेज में भी, लेकिन वो फेमस है और बहुत ही वेल नोन है। आप उसको लिख सकते हो बट नॉट इन दैट लैंग्वेज, बल्कि इन रोमन स्क्रिप्ट, मतलब इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, मतलब उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिख देना है, मतलब उसको देवनागरी में नहीं लिख देना है। अब नरेश्वर को आप, है ना, ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख देना आपको, और क्योंकि पेपर इंग्लिश का है, इंग्लिश मीडियम में आप लिख रहे हो, यू कैन नॉट राइट द देवनागरी स्क्रिप्ट, यू कैन राइट इन द रोमन स्क्रिप्ट, इंग्लिश वाले में आप लिख सकते हो, पहला चीज। सेकेंड चीज, whenever you write something of other language in English, in the bracket और कॉमा लगा के मीनिंग करके लिखते हुए, you have to write its meaning in English। ठीक है, ये पूरा एक्सेप्टेबल है थ्रू आउट द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। आप हिंदू देखो ना, हिंदू अखबार में, उसमें भी रोमन में ही लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा रहता है जो लिखा रहेगा, हिंदी का कुछ लिखा होता है और वो लिखा होता है इटैलिक्स में, एंड देन इन द ब्रैकेट मीनिंग ऑफ इट इज आल्सो रिटन, या मीनिंग करके लिख देता है ब्रैकेट, या ये लिख देता है, राइट। यही स्टैंडर्ड अप्रोच है, यू कैन राइट। हाँ सर जैसे मैं एक दो चीज एग्जांपल वाले जिसमें मुझे कंफ्यूजन है। जैसे सर एक ऐसे आया था 2020 में, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो सर जैसे उसमें मैंने एक वो कोट लिखा था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अशोका का एग्जांपल लेके कि इट हैज मूव्ड फ्रॉम युद्ध टू बुद्ध। अब सर ये सब जैसे बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके आगे मीनिंग भी लिख दी थी, या जैसे विवेकानंद का है कि शिवा इन एवरी जीवा, या सर कोई पोएम है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब सर ये सब ये वेद जैसे सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम, ये सब उपनिषद या किसी में है। अब ये सब जो पोएट लिखे हैं या तो हिंदी में राइमिंग है, लेकिन वो इंग्लिश में उसका मतलब अच्छा नहीं निकलता है, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, तो ये सब चीजें हिंदी में लिखनी चाहिए कि नहीं? हिंदी में, मतलब मेरा मतलब है इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश लेटर यूज करके लिखना है। आप देख सकते हैं बहुत लंबी नहीं हो, जैसे पोयम ना हो, डोंट मेक इट ए लॉन्ग पोयम, है ना, मेक इट ए 2 लाइन 1 लाइन, एंड यू कैन देवनागरी में होगा, यू कैन ऑलवेज राइट इट, बट यू हैव टू राइट द मीनिंग, बिना मीनिंग के नहीं लिख सकते आप, क्योंकि, और रही बात की कॉपी कौन चेक करेगा, आप नॉर्थ इंडियन नहीं हो, साउथ इंडियन, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आपका जो महाराष्ट्र से के भी लोग ये लिख सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट दैट व्यू, जो अदर स्टेट्स हैं जो कि डीप साउथ है, उनको तो नहीं आता हो, उनको छोड़ के बाकी सब लिखते हैं, पर वो लोग भी अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, टेलिंग द मीनिंग। ये बताइए, आप किसी भी स्टेट के हो, हाउ डज इट क्रिएट ए बायस इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर? कैसे बायस क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता क्रिएट, है ना, उसका कोई बात नहीं, उतना बायसनेस कभी नहीं होता, बट थिंग इज दैट यू कैन राइट, बिकॉज उसका जो मीनिंग होगा उस लैंग्वेज में बहुत अच्छा होता है, जैसे बोला है ना कि शिव का बताया अभी, जीव से शिव और क्या, हाँ और सर जो, शिवा विवेकानंद जी हाँ नहीं हाँ शिवा हाँ इन एवरी जीवा। हाँ, ये सब वर्ड का इक्विवेलेंट इंग्लिश अच्छा नहीं होता, उतना राइमिंग नहीं होता, यू कैन राइट डाउन, बट यू कैन राइट द मीनिंग इन इंग्लिश, वो लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, मैंने भी किया हुआ है, लगातार स्टूडेंट्स करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि उसके बिना आपका ऐसे में ना इनोवेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड हाँ फॉर्मेट। सर क्योंकि ये सब मैं करता हूँ, नंबर भी मेरे सही आ रहे हैं, मतलब इस टाइप का अरे वो हाँ। तो क्या लोग बता रहे हैं, वो अपना जनरल जानकारी से बता रहे हैं, बट एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकल हो रहा है हम लोग वो चीज यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी? नहीं, ओवर। ठीक है, विज्ञान देख लेंगे, है ना, सर ठीक है, विज्ञान देख लेंगे, हाँ
मेरे को सर मतलब डीए से रिलेटेड है, आपने जैसे पिछली बार बताया उससे। हाँ पार्थ। हेलो हाँ सर, जैसे आपने बोला था ना कि तुम जो भी पढ़ रहे हो एक एक मिनट लगा के सोचते हो कि किसे यूज क्या करने वाले हो। तो सर जिस पेज पे चल रहे थे उससे हल्का सा स्लो। हाँ साउंड चली गई है पार्थ। हेलो हाँ सर, पार्थ साउंड चली गई है। हाँ कम अगेन। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने पिछली बार बोला था कि तुम जो भी पढ़ रहे हो कुछ भी पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि उसे कहाँ यूज करना है या कहाँ तुम यूज करोगे। तो सर जब ऐसा सोच रहे हैं तो मतलब यूज तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है अभी मतलब। तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना कि मतलब 15-20 मिनट में ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगेगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर आने लगेगा। अभी ये देखो, जो भी नया चीज करोगे ना थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है, लेकिन जब आपका माइंड वैसा हो जाएगा ना, वो लगातार एक्सेप्ट करेगा और उसको यूज करना जान जाएगा, तो यूज करेगा फटाफट। अभी जो भी नया चीज करोगे तो थोड़ा सा हिंड्रेंस तो आता ही है, लेकिन ये बहुत यूजफुल रहता है। एग्जाम में तुमको देखोगे, क्वेश्चन देंगे तुम्हें बस अपने आप आइडियाज आ जाएंगे, है ना। नहीं सर, वो तो समझ में आ रहा है कि जैसे एक ही एग्जाम्पल को ना कैसे 7 जगह चलाना है, मतलब 6-7 जगह यूज हो रहा है सेम एग्जाम्पल, तो वो तो उसका काफी फर्क पड़ रहा है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा एंड यू विल। और एग्जाम में आंसर लिखने में भी मजा आएगा कि अरे मुझे तो मतलब तुम्हें नए नए आइडियाज आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाओगे, है ना। इसको तो सभी को करना चाहिए। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट इससे के अलावा? हाँ सर वो आपने वो हाँ धनराज, लिखा है ना सर, धनराज आवाज नहीं आई, फिर से बोलना। वो बॉडी में आपने कुछ पेस्टल लिखा है ना, PZ। अच्छा पेस्टल। हाँ सर, उसका क्या मतलब मीनिंग है? अच्छा अच्छा, पेस्टल क्या है? पी फॉर के पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एनवायरमेंटल, एल फॉर लीगल, है ना। ये अप्रोच है जिसकी वजह से आप यूज करते हैं अपने ऐसे में। मतलब ऐसे के डायमेंशंस हैं ये, जैसे यू विल राइट समथिंग क्या पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, सर है ना, ये एनवायरमेंटली। डायमेंशन हाँ यूज क्या करता हूँ ऐसे में, बट आपने बोला कि ये फिलोसॉफिकल ऐसे में यूज नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ फिलोसफिकल में यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिलोसफिकल का ऐसा नहीं होता है कि यू कैन यूज दिस, वो बहुत ही अलग डायमेंशन में होता है। जनरल ऐसे में ऐसा मौका लगेगा, पर ये मौका हर ऐसे में नहीं लगेगा। मतलब मैं जो बताया हूँ, आई एम टेलिंग यू वेरियस वेज। कोई वे लग सकता है, मल्टीपल वे भी लग सकता है, पर ये नहीं कि पेस्टल अप्रोच लगेगा सब जगह लग जाएगा। कहीं कहीं लग जाता है, कहीं नहीं लगा। जबरदस्ती का डायमेंशन नहीं डालना है। एक होता है ना जबरदस्ती मुझे लिखना है कि मुझे पेस्टल ही लिखना है, तो ये जबरदस्ती का डायमेंशन है। जो जो टॉपिक का डिमांड नहीं है और आपने जबरदस्ती डाला है, तो आपके नंबर अपने आप ही कम हो जाने हैं। टॉपिक का डिमांड के हिसाब से आंसर लिखना है, और कोई भी कॉन्सेप्ट जबरदस्ती नहीं डालना है। तो पेस्टल अप्रोच जहां यूज होगा वहीं होगा, हर जगह नहीं होता है। और फिलोसफिकल ऐसे में नहीं करो तो अच्छा, कोई उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर एक बात पूछी थी, जैसे हमने पेस्टल अप्रोच में कहा, मान लो हमने सोशियोलॉजी पार्ट डाला, ठीक है, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन ऐसे बताया, तो उसको क्या सब डायमेंशन वाले पर ये सोशियोलॉजी का वुमन चाइल्ड हो गया। बिल्कुल 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 ऐसा कर सकते हो। कोई एक दो डायमेंशन में लग रहा है कि बिल्कुल वो एप्ट है और करना चाहिए, तो 2-3 डायमेंशन कर सकते हो। एक होता है ना, लोग नियम से पूरा पेस्टल लिखते हैं, है ना, पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो वो एकदम कैप्चर हो जाता है एग्जामिनर की ये एकदम चाह रहा है कि रट कर आया है कि पेस्टल बहुत कॉमन हो गया है। ठीक है, एवरीबॉडी आउट ऑफ 10 4 लोग लिख रहे हैं पेस्टल। हाँ सर जैसे कि दो चार जैसे डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि अनिका मैडम ने बताया कि डायमेंशंस अलग अलग डायमेंशंस, तो अलग अलग डायमेंशंस के अंदर को हम लोग दे सकते हैं एग्जांपल ना, एज अ पॉलिटिकल है, कोई इकोनॉमिक्स का है एग्जांपल है, वो आ रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरल ऐसे में बहुत चलता है, फिलोसफिकल में ऐसा मौका नहीं लगता, कम लगता है। अगर लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि 2 डायमेंशन में ये लग रहा है, 2 डायमेंशन हम डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए, है ना। मैंने एक जनरल अप्रोच बताया कि जबरदस्ती फिलोसफिकल में पेस्टल नहीं डालना है। बहुत बार नहीं पड़ता, 80% ऑफ टाइम नहीं पड़ता है पेस्टल का नाम आप देख लो ना क्वेश्चन पेपर, पेस्टल का मतलब नंबर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर लगाना चाहो तो जबरदस्ती लगाया जा सकता है, लेकिन अगर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मिल रहे हैं तो यू कैन डू इट। मतलब अपना ऐसे फ्लूइड रहना है, फ्लूइड, ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती का दिखे।
ठीक है। सर जैसे मैं जो आप कह रहे हैं ना वो मैं स्टार्ट ऐसे करती हूँ फिलोसफिकल ऐसे कि एक एनेक्डोट से पहले स्टार्ट करती हूँ, कोई भी एक एनेक्डोट लेती हूँ, इंडिया का ही मोस्टली लेती हूँ, और उसके बाद में जाकर के उस एनेक्डोट से मैं नीचे जाकर के वो दिखा देती हूँ किस तरीके से ये लिंक था ये एनेक्डोट ऐसे के साथ, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के अप्रोच में जाती हूँ कि क्या है ह्यूमन, जैसे कि वो ह्यूमन वाला था कि क्या है ह्यूमन, क्यों होनी चाहिए, कैसे हुआ है टाइम अक्रॉस, फिर टेम्पोरल एनालिसिस कर देती हूँ, और जब टेम्पोरल एनालिसिस करती हूँ तो उसी में मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह सब ले लेती हूँ। वो मैं जैसे हिस्ट्री से उठा करके वो वहां से मैं स्टार्ट करके टेम्पोरल एनालिसिस कर देती हूँ। तो ये एक मेरा अप्रोच है। मैं कर सकते हो, डिपेंड करता है। देखो पूरा पूरा प्रिंसिपल तो नहीं अप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत। एक्चुअली टॉपिक पे भी बहुत ही डिपेंड करता है, इसलिए हम सर लोग आपकी आवाज नहीं आ रही। यस यस, नाउ इट इज कमिंग। अभी आ रही है आवाज? सर बहुत धीरे आ रही। अभी आ रही है? यस सर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि ये सब ना बहुत चीजें टॉपिक पे डिपेंड करता है, और मोस्टली टॉपिक के हिसाब से ये अप्रोच यूज होता है, इसलिए मैंने तो काफी अप्रोच बताया। ये टॉपिक जैसे मैंने ये बताया आपको, एंटिटी स्टेक होल्डर, ये भी ये भी यूज हो सकता है कुछ एक ऐसे में। आपको ये अप्रोच ध्यान में रखना है, एंड एज पर द टॉपिक, जैसे टॉपिक आए अप्रोचेस आपको समझ में आ जाए कि कौन सा मैं यूज कर सकती हूँ कहाँ, तो ये आप यूज कर सकते हो। इवन यू कैन इंटरमिक्स ऑल्सो, जैसे यहाँ से आपने क्या बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी उठा लिया, फिर यहाँ पे आप ये थोड़ा बहुत एंटिटी यूज कर लिया, कोई जरूरी नहीं कि आप इंडिविजुअल तक जाए, फैमिली कम्युनिटी और रीजन तक यूज कर लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर सारा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। सो एवरीथिंग मैटर्स इज द क्वेश्चन, लेकिन आप अप्रोचेस पता रहेंगे तो आप उसको यूज कर पाएंगे। ये रास्ते हैं, है ना। अब जैसा आपका गोल आएगा वैसे रास्ते आपको चेंज कर लेने। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे 10 पेज में मिलते एग्जाम में, ठीक है सर, तो सर अगर पहले पेज पे इंट्रो और बाकी बॉडी आखिरी कंक्लूजन, ठीक है सर, फॉर्मेट या छोटा करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं 10 पेजेस है तो हम सर पहले एक पेज का इंट्रो एक पेज कंक्लूजन, ठीक है सर, नहीं यार छोटा करो नहीं, नहीं मैंने तो डिस्कस किया ना इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं 1 पेज 1.5 पेज में भी आ सकता है, डिस्कस किया था मैंने, थे उस समय। ठीक है सर नहीं उस समय थे जब मैंने डिस्कस किया था। नहीं सर, उस टाइम पावर चली गई ना। ओह तभी नहीं पता चल पाया। अच्छा मुझसे कॉल करके डिस्कस कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम लोग जैसे कोई रैंडम ऐसे दिख रहे हैं तो किसी को चेक करवा सके इंडिया भाई में कोई मतलब टीम में, या तो फिर क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं तो अपना ऐसे तो हमें लगता है कि चलो ठीक लिखा है, लेकिन फिर बाद में फ्लॉज बहुत सारे निकलते हैं जब कोई टीचर या कोई वेटरन इंसान जब चेक करता है तो, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा लिखते आ रहे हैं, लेकिन अपने हमको समझ में नहीं आता है कि अच्छा ये फ्लॉ था और ये चीज सही नहीं लगा और ये चीज गलत हो गया मतलब। देखो ऐसे का अभी कोई ऐसे लिखी तो हो नहीं, राइट, नहीं लिखी हो ना। सर यहाँ पे इंडिया भाई में तो सर नहीं अभी लिखे हैं, लेकिन हाँ ऐसे मतलब कि लास्ट ईयर मेंस दिया था तो ऐसे वगैरह लिखे थे उस टाइम भी। नहीं वो तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर पहले यहाँ पे ऐसे करो, यू हैव यहाँ पर 6 ऐसे हैं, 6 ऐसे हैं, आप 6 ऐसे कर लो, आपको लगता है कि आपको और लिखने हैं तो मैं वो भी मौका दे दूंगा, वो भी कॉपी भी चेक कर लेंगे और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सी डिसीजन इज कि स्टूडेंट लिखता ही नहीं है, आप बोलो कि सर मुझे पहला ऐसे भेजिए मैं भेज दूंगा, आप लिख के दिखाओ, है ना, कॉपी चेक होगी, फीडबैक लो 1 to 1, है ना, प्रॉपर चैनल में करो तो उसको इसका बेनिफिट होगा। ऐसे ही कोई पीयर टू पीयर रिव्यू कर लेगा तो उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो भी आप इधर तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब मान लिया कॉपी आपने भेजा तो आपकी अनिका मैडम चेक करेंगी, वो आपको 1 to 1 फीडबैक देंगी, आपको किसी और से चेक कराना, मुझसे चेक कराना है तो फिर मैं भी कर दूंगा चेक। तो डिपेंड्स कि आप फीडबैक मेंटर से लो, है ना, और आप कितने टेस्ट लिखना आप लिखो, 6 ऐसे हैं, इफ यू वांट टू राइट सम मोर यू कैन राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। पीयर टू पीयर रिव्यू तो होते ही रहता है, आप तो किसी से करा सकते हो, पर उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं है, ओके। सर मेरे को लगता है कि बेनिफिट नहीं होता है पीयर टू पीयर रिव्यू में, क्योंकि फिर वो लोग ना आपकी सिर्फ अच्छाइयां बताते हैं, बुराइयां नहीं बताएंगे, उनको कहीं उन्हीं को ऊपर के पॉइंट मिल जाते हैं आपके ऐसे से, अच्छा मैं भी यूज कर सकता हूँ इस पॉइंट को, और वो यूज भी करते हैं सर, ये भी होता है। ऊपर से आपकी बुराई निकालेंगे तो उसके 2 नुकसान है, एक तो आपको खराब लगेगा, उनसे थोड़ा आप दूरी बना लोगे, दूसरा ये है कि बुराई बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कमियां, तो आप कमियों पे वर्कआउट करोगे, कल को आप सर वो तो होता ही है, आपका अच्छा पॉइंट वो एग्जाम में यूज कर लेते हैं और आपको नहीं आता एग्जामिनेशन में उस टाइम क्लिक होता है, और वो यूज कर लेंगे आपका अच्छा पॉइंट। वो तो होते ही। अब जैसे टॉपर जो निकले हैं, जो भी रैंक है, कभी मैंने नहीं देखा कोई टॉपर बैठ के अपने दोस्त को बता रहा हो बेटा ऐसे लिखना है ऐसे करना है, तुम भी निकलो, कभी देखा आपने? मैंने नहीं देखा कोई टॉपर या कोई सिलेक्टेड बंदा किसी को गाइड कर रहा हो, ये लोग नहीं करता कोई,
एक तो उसके 2 रीज़न है, एक तो वो अपना भाई अपनी उनकी दुनिया में वो जो है घूमने फिरने वाली रिकॉग्निशन दुनिया में बिजी हो जाते हैं। सेकेंडली उनको कोई उसका उसको क्या क्या बेनिफिट है कि उसको मतलब वो उसको पढ़ाएं बताएं निकालें, है ना? क्योंकि आप जनरली क्या बोलते हो कि टॉपर है तो उसको कुछ पता तो होगा, तो आप उससे पूछोगे, लेकिन उसके पास या तो टाइम नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट्स जो लोग निकल जाते हैं धीरे धीरे करके अच्छी रैंक में कोई भी, तो हार्डली कोई इंटरेस्टेड होता है किसी को गाइड करने में। लास्ट ईयर जैसे पल्लवी थी, पल्लवी वाज इनटू द मतलब उसको आईएएस मिला था, तो कुछ एक टाइम तक उसने कॉपी चेक करी। मैंने उसको बोला कि तुम सबकी कॉपी चेक करो, सबको फीडबैक दो। बहुत अच्छा फीडबैक दिया उसने, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही उसकी मसूरी का ट्रेनिंग है वो चली गई, और उसके बाद टिल नाउ मतलब उसको बोलती नहीं सर ठीक है हम ऐसे ही रहेंगे, मतलब क्या करना, क्यों अब टेंशन लें, हेडेक क्यों लें। मोस्टली लोग नहीं करते हैं, है ना? तो बेस्ट क्या है कि आप पीयर टू पीयर रिव्यू से अच्छा आप मेंटर से रिव्यू लीजिए, हम लोग से लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, मेंटरशिप में भी हैं। मैं कहता हूँ 6 ऐसे हैं, आप जितने और लिखने हैं ऐसे और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी चेक करेंगे, फीडबैक देंगे, ठीक है? वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनीथिंग एल्स? एनी क्वेरी कोई और? एक क्वेश्चन कि जैसे फिलोसफिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे का टॉपिक है, ठीक है, उसको अगर हम एथिकल एंगल पे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में एथिकल एंगल पे ले जा करके ह्यूमैनिटी या ह्यूमन पे उसको लिंक कर देते हैं एंड देन हम फॉलो करते हैं पेस्टल में, ताकि मैं आराम से एथिकल डायमेंशन पे मैं दिखाते जाऊं, कॉन्ट्रास्ट दिखाते जाऊं कि व्हाई ये जरूरी है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल लेवल पे, एंड देन एंड भी करूं एथिकल एंगल। तो क्या ये आपको सही है? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो, सारा चीज़ मैंने बोला ना, बहुत चीज़ डिपेंड करता है टॉपिक पे, क्या टॉपिक की डिमांड क्या है और आपको कितना आता है। ये दोनों का मैच ही एक तरह का ऐसे है ना? अगर आप टॉपिक की डिमांड मैच कर पा रहे हैं और टॉपिक का कंटेंट भी आपको पता है, तो और कैसे क्वेश्चन पूछा है वो आप एड्रेस कर पा रहे हैं, तो खेल ही खत्म हो गया ना, फिर तो हो ही गया। अब जब वही का मिसमैच रहता है, तभी ये सारा चीज़ जो ना नट बोल्ट टाइट किए जाते हैं कि क्या मैं ये एथिकल लिख दूँ, फिर पेस्टल लिख दूँ, ये बिल्कुल कर सकते हो, सब कुछ अलाउड है। देखो ऐसे ओपन फील्ड, यू कैन डू एनीथिंग एज़ पर योर ओन नॉलेज और जो भी है, लेकिन वो टॉपिक का मिसमैच ना हो, बस मेरा ये कह रहा हूँ। अगर वो लगता है कि एथिकल लिख सकते हो तो लिखो, बिल्कुल लिखो, पेस्टल लिख सकते हो लिखो, ऐसा भी नहीं देखो फिलोसफिकल में पेस्टल बिल्कुल नहीं करना ऐसा भी नहीं, यू कैन डू इट इफ इट इज मैचिंग द रिक्वायरमेंट, और ऐसा हो रहा है। बहुत टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने बताया कि जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन अगर हो रहा है तो कर दो, ठीक है? तो अगर हो रहा है यू कैन डू इट, अभिनव, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल क्या है यूपीएससी का, वो जो क्वेश्चन पूछे हमको आता रहे, कंटेंट का मैचिंग, क्वेश्चन का मैचिंग, यही है। आता है तो कर दो, नहीं आता तो फिर नहीं आता, तो फिर यही सब जो ट्रिक्स अप्रोचेस जो मैं बता रहा हूँ, ये सब काम आएंगे, ठीक है? एक चीज और है कि कई बार जो कोटेशंस होते हैं ना, उसके वन से ज्यादा मीनिंग्स निकलते रहते हैं। जैसे अगर आप पिछला ये देखें अगर एग्जामिनेशन में, हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, इसको सबने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट में, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेरेंटहुड से भी है, क्योंकि जब जैसे पेरेंट परवरिश देंगे वैसे ही जाके आगे सोसाइटी बनेगी। और इसमें बहुत एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स भी थे, बिल्कुल सही, और जैसे हिटलर का कर सकते एग्जाम्पल हैं, था, हाँ। और सबने इसको बोला कि नहीं इसको वुमेन एम्पावरमेंट पे, जबकि जबरदस्ती ये वुमेन एम्पावरमेंट कुछ पढ़ नहीं रहा था। इसका सीधे सीधा मैंने हिंदी ही देखा था इसका, कि मतलब कि हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, इसका हिंदी भी वही बता रहा था कि पेरेंटहुड पे ज्यादा लाई कर रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर आओ, जब एग्जामिनेशन सेंटर पर सब बोलते तो बहुत दिमाग खराब होता है कि पता नहीं क्या सही किया गलत किया और नंबर मिलेंगे कि नहीं। ऐसे केस में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इसमें बहुत डायमेंशंस निकल, देखो कोड का क्या, कोड ओपन एंडेड होता है, इट्स यू टू इंटरप्रेट इट, है ना? आप जैसा सोचोगे वैसा निकलेगा। तो एक डायमेंशन इसका ये है कि जो जो वुमन है, जो आज क्रेडल को बुला रही है, वो रूल कर सकती है, एक एक डायमेंशन ये है। तो उसमें आपको बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट वाला मतलब वो एक गांव में एक गरीब लड़की और एक शहर की मेट्रोपोलिस की हेड, है ना? कोई भी कंपनी में बहुत सारी हेड है, जैसे कोक की हेड है ना? और भी लोग हेड है, तो वो ये दोनों लेडीज हैं, और वो क्या बोलते हैं, घर पे वो एक क्या हाउसवाइफ है, उसका बच्चा है, और उसको नहीं, उसको भी क्रेडल खिला रही है और वो रूल भी कर रही है। ये भी एक डायमेंशन हुआ, एक पेरेंटहुड का डायमेंशन हुआ जो आपने बताया। और भी डायमेंशन हो सकते हैं, आप सारे डायमेंशन कर सकते हो, अपनी बात को रखने का तरीका है ऐसे, ठीक है? जितने ज्यादा डायमेंशन होंगे और जो रिलेटेड विद ऐसे होंगे उतना अच्छा रहेगा।
उसको बिल्कुल किया जाता है। सर उसमें जैसे कि या तो पेरेंटहुड पे हम लिखेंगे इसमें तो पूरा ए से पेरेंटहुड पे जाएगा, किस तरीके से होता है, कैसे हुआ, क्या पेरेंटहुड बहुत जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, कैसे फ्यूचर हुआ, इसी पे इतना सारा कंटेंट हो जाएगा सर अगर पेरेंटहुड पे लिखने चले कि मतलब कि फिर शायद लगता है मेरे को 1200 क्या 1500 2000 भी इंसान को चला जाएगा, एक्सीड हो जाएगा सर। और अगर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सर ओपन एंडेड है, उसका तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, उसमें बुक लिख सकता है इंसान। सर जैसे इसमें ये हैंड ये ग्रेडल वाला क्वेश्चन है, इससे आप पेस्टल अप्रोच भी लग सकती है। सर बिल्कुल हाँ पेस्टल कर सकते हो। पेस्टल देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, इट इज नॉट ए फिलोसफिकल ऐसे। जो लोग सोच रहे थे कि दोनों फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल थोड़ी ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या फिलोसफिकल है? सर दिया है कोर्ट्स पे सर तो बहुत ही ओपन एंडेड था, मतलब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकल रहे थे। कुछ लोग इसको एथिक्स पे भी ले गए उस लेवल पे कि किस तरीके से मतलब कि क्या एथिकल मतलब हम अपने सोसाइटी को दे सकते हैं तो किस तरीके से सोसाइटी ग्रो करी। कुछ लोगों ने इस पे एथिकल पॉइंट पे पूरा लिखा था। मेरे को लगा पेरेंटहुड पे है और मेरे फ्रेंड को लगा था कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो ये सबका बहुत ही अलग अलग इंटरप्रिटेशन आता है। और कोचिंग वाले सब ड्वेल कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे लग रहा है कि पेरेंटहुड को तो मतलब कि कुछ वही नहीं है, जबकि हिंदी में भी मैंने इसको पढ़ा था और इसका पेरेंटहुड सबसे बेस्ट मेरे को लगा। इसमें क्या है ना, देखो जब ऐसे कोट वाला होता है उसमें एक डायमेंशन पे हमेशा फोकस नहीं कर सकते। तो एक डायमेंशन सही नहीं हो सकता। मतलब ये सोचो कि पूरा पूरा वुमेन एम्पावरमेंट पे है तो वो एक पार्ट है, इट कैन बी 50% ऑफ द पार्ट, 20-30% आप यू कैन पुट पेरेंटहुड आल्सो। और भी डायमेंशन है, पेस्टल वाला भी डायमेंशन है। और ये डायमेंशन भी है कि वो लेडी घर पे क्रेडल घुमा रही है और वो रूल भी कर रही है, ये भी एक डायमेंशन है, द सेम लेडी। ठीक है, जैसे इंदिरा नूई है या जो भी हेड है बड़ी बड़ी कंपनीज के, जो भी वुमेन है ना, इवन जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मतलब दोनों कर रही थी। वो एक जमाने में बच्चे पाल रही थी और आज वो रूल कर रही हैं। तो ये भी एक डायमेंशन है। पर किसी डायमेंशन को ना ओवर एम्फेसिस नहीं करना है, मतलब पूरा ऐसे एक ही डायमेंशन में नहीं करना है। 3-4 डायमेंशन निकाल सको तो वो ऐसे अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा डायमेंशन होंगे उतना ऐसे ऐसे का क्या क्रिएटिविटी अच्छी होगी, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन होगा, उतना अच्छा एग्जाम्पल आप सेट कर पाओगे। अलग डायमेंशन के तो सारा खेल है। एक डायमेंशन पे रहोगे ना तो आपके नंबर अपने आप ही कम हो जाने हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द मेजर डायमेंशन। सेकंड इज योर डायमेंशन। थर्ड वाला जो मैंने बताया वो भी डायमेंशन हो सकता है। और भी डायमेंशन जो आपको लगे हो सकता है, उसमें एक एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है, कोई उसमें बुराई नहीं है। ऐसे इज सर अबाउट ऐसा डायमेंशन। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो हम लोग पूरा उस ऐसे का वही दे दे, एक आइडिया दे दे 3-4 लाइन में, जैसे मैंने कई टॉपर्स को देखा, मैंने भी ये चीज किया था कि व्हाट की आगे आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि क्या क्रैडल किस तरीके से जो होता है, हैंड जो होता है क्रैडल जो होता है वो रूल कर रहा है, ठीक है, किस तरह से वो जो हैंड्स है दैट्स हैंड पता नहीं जो भी भूल गई मैं, क्रैडल वो किस तरीके से रूल कर रहा है। तो इसका हम ये ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे सकते हैं कि इसका क्या मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या सिर्फ ये है कि हमारे सिर्फ पेरेंटहुड से या फिर जो हैंड्स एक्चुअली क्रैडल को झुला रही है वो भी रूल करती है। ऐसे करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दो एक पैराग्राफ के अंदर हम पूरा उसका एसेंस दे सकते हैं ऐसे का कि क्या ऐसे में आपको एक्सपेक्ट करना है। अनुदीप दूरी शेट्टी के बाद से लोग आजकल करने लगे हैं। अनुदीप दूरी शेट्टी ने लिखा था इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऐसे करके लिखा हुआ था और उसकी कॉपी काफी वायरल हुई थी, तो लोगों ने ये फॉलो करना शुरू किया। बट एक्चुअल ऐसे में उसने नहीं लिखा था। जैसे उसने ब्लॉग में बोला कि एक्चुअल ऐसे में ही डिड नॉट राइट की इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। लेकिन लोग लिख रहे हैं और एग्जाम में भी लिख रहे हैं। पर यू कैन राइट डाउन, पर उसमें बहुत ही ब्रीफली लिखना पड़ेगा, बहुत उसमें डिटेल नहीं कर पाओ, डिटेलिंग तो बाद में होगी, बट यू कैन राइट। सर 3 से या 4 लाइन में कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म, क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि मतलब कि मैंने मेरा ये चीज है नहीं, इट्स एन ओपन फील्ड, इट्स बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। आप कर सकते हो, इट्स योर ओन साइड। ऐसे में कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है। पर वही है कि डायमेंशन वो क्वेश्चन के हिसाब से हो, एकदम डिफरेंट ना हो जाए, ठीक है। ओके, फिर आई थिंक ऑल डाउट्स आर ओवर, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गॉन आल्सो, ठीक है। सो विल डिस्कस, है ना। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू। नेक्स्ट में हम ऐसे डिस्कस करेंगे और डिटेल में, हाँ कुछ और चीज भी करेंगे डिस्कस, कुछ माइनर पॉइंट्स। और आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, वो मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको अपने टेस्ट में फॉलो करिए। और
फिर तो मेरे ख्याल से वेबिनार 1-2 और होंगे एंड इट्स ओवर। एंड हम लोग कुछ और डाउट सेशन ले सकते हैं इन केस यू आर फीलिंग डूइंग समथिंग, कोई डाउट है, नहीं तो फिर यू आप मतलब तैयारी करिए और बाकी कोई डाउट हो तो मुझसे 1-to-1 कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? ओके डन। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर हाँ सर मुझे बात करनी थी, मैं कर लूं? हाँ करो बात, करो करो। ठीक है, ओके। अच्छा कॉल पे करना है, ठीक है कर लो। सर कॉल ठीक है, करता हूँ मैं आपको। हाँ ठीक ठीक, 10 मिनट बात करना, ठीक 10 है? मिनट, ठीक है, 11 ओके। ओके थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।